यहाँ से from here we can see the anatomy from the external occipital protuberance. This is the most prominent part of the occipital bone, which is posteriorly, and behind that very important structure lies is the torcula. We know the torcula. Torcula is the confluence of all sinuses, from where the straight sinus comes, then goes into transverse sinus, sagittal sinus comes here into the transverse sinus. The sigmoid sinus from here comes like this and meet here. It is the confluence, and then at the center, from where the both internal cerebral vein meets and becomes the galen, and then galen drains into the straight sinus, and then straight sinus drain into the torcula, and then below also, in between the over the vermis, there is a sinus which is also called occipital sinus. So that also drains. And in posterior fossa, the most important thing which we have to see when we open this skull bone from here and C1, C2 is there are numerous venous lakes which are undescribed, and the venous anomaly in the posterior fossa is very, very common. So we have to be careful about that also. So as sir said that because the C2 passes from here, C2 nerve road supplies the occipital area also. So just mark the external occipital protuberance and then below that give the incision, so we can save the, because we don't have to open the posterior fossa here, we have to open the foramen magnum, then C1 and then C2. So the incision below we have to give a little more, so we can retract the soft tissues. So who will tell me the attachments of ligamentum nuchae? कौन लगाएगा इंसिजन? लोग तुम लोग करो, हम तो करते रहते हैं यार. बताओ लिगामेंटम न्यूकी का अटैचमेंट. Why it is so important? Is it important or not? It is not important. Yes. Why? Yes. So it is, we can say that it is now rudimentary in humans because it is not of useful. When the quadrupedal animals or mammals, they have to keep their neck like that, so then they have to straight them, then it is required. Have you felt the C2? Yes, sir. Have you felt the C6 spinous process? Okay, go ahead. So once you reach the bone, you feel the bone, then you have to do the subperiosteal dissection in live. And here also, what we learn here will apply on the patients. So here we have to do आराम से. एक्चुअली फॉर्मेलिन से स्टिफ हो जाती है ना बॉडी पूरी. कोई बात नहीं, ये तो एक मिनट मेरा चश्मा उतार के आता हूँ. बोन फील करके बोन से लिगामेंट काटो and do this subperiosteal dissection, because the C2 is the first spinous process which you feel when you open it. So at the bifid spine you have to dissect the muscles, paraspinal muscles, vertical muscles, suboccipital muscles, and go subperiosteally. आ जाए राजेश. बच्चों को पढ़ाओ यार. मैं पूछ रहा हूँ इनसे लिगामेंटम न्यूकी का अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कोई नहीं बता पा रहा यार.
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे तो सीखने का तो ऐसे ही है ना, वी आर नॉट किसी को वो थोड़ी कर रहे हैं अपन, इनके लिए तो सीखने की चीज़ है ना, तो बताना जरूरी है। सो वेयर यू आर नाउ, हैव यू फेल्ट द C2 स्पाइन बाइफिड? इसको थोड़ा फोकस वो कर सकते हो, और एक मिनट इसमें देखना तुम्हारा क्या है, आईपीडी क्या है? आईपीडी 65। इसे फोकस नहीं है बेटा, उसकी फोकल लेंथ गड़बड़ है। नहीं नहीं, मैग्नीफाइड नहीं है वो तो ऊपर। आपने कम किया क्या अभी? कम किया था। ये ज्यादा हो रहा है? नहीं अब ठीक है। ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? इससे हो गया? डायरेक्शन चेंज करेंगे अपन को सर, ऐसे ना। हाँ कोई बात नहीं, अपन ऐसे अभी ओरिएंटेशन तो ऐसे रहना चाहिए ना, इससे इससे वो खोलना पड़ेगा बेटा, इससे धक्का मत मारो, खराब हो जाएगा। ये वापस टाइट कर दो वो दोनों। नहीं, इसकी मुझे फोकल लेंथ बढ़ानी है। हाँ ऊपर उठाना है। हाँ ये क्या हो रहा है? लाइट जाएगी क्यों? हाईएस्ट वो हाइट होगा सर, इससे सर वो डायरेक्शन चेंज। नहीं इससे तो वो होगा, फोकस तो हुआ है बट उतना नहीं हुआ। अब हुआ, अब हुआ, हो रहा। नहीं नहीं ये हो गया, ये इसकी फोकल लेंथ कम कर रखी है हमने। अब देखो इसमें माइक्रोस्कोप में देखो, यू कैन सी द C2 bifid spine and then muscles attached to it. This is डिसेक्टर नहीं है क्या? ये this is C1 tubercle, posterior tubercle, and this is the C2. You have not exposed C2, you have went down to C3. This is the bifid in the this under the my finger. This is at the dissector. This is the C2 bifid. Everybody should feel it. Feel करो इसको सब. So you don't have to identify C1. You don't have to identify down. You have to just identify C2 and then go above and below. ठीक है, करो डिसेक्ट। अब नाउ यू डू द मसल डिसेक्शन सब पेरियोस्टली। ये माइक्रोस्कोप में देखते हो कर बेटा, तुम्हारा ये इसका फोकल वो क्या कहते हैं, वो भी ठीक करो, आईपीडी ठीक करो, और ये ठीक करो इसका जो क्या हाल है शर्मा जी? पढ़ाओ बच्चों को। परवीन नहीं आएगा अभी? आप तो एक मोहर बना लो साइन की, एक मोहर बना लो जेब में रखा करो। एक्चुअली मेरा नाम मत लगाया करो अगली बार से, कभी भी मैं आऊँ तो, क्योंकि क्या होता है कि मैं डिग्रीज देता हूँ। अच्छा, तो ये कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि आगे से ध्यान रखना, मेरा नाम मत लगाना। तो इसमें आप वो डुप्लीकेट कर दो। मेरा मैं सिविल से कहीं नहीं आता, मतलब कोई भी वो श्री चित्रा में भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें मैं नहीं साइन करता। वो वाले साइन सिर्फ एक जगह साइन करता हूँ, सिर्फ डिग्रीज, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज। सिर्फ अपना सभी सब्सिक्वेंट कॉन्फ्रेंस सुनो, में ध्यान रखूंगा। अभी आप ना जो जमीन मतलब इससे जमीन के कागजों पे साइन करके ना वो कर दो इस पे। है? नहीं आइडियली नहीं। हाँ जी, सब पेरियोस्टल डिसेक्शन पहले, सबसे पहले वी हैव टू फ्री दी और द स्केलेटनाइज द C2 and then go laterally. So the muscles will be detached from the C2 spine and then the transverse process and the spinous process. So then you can dissect up and below.
तेरी चिट्ठी लेके नहीं गया तो अभी तक? नहीं, चिट्ठी मंडे ट्यूसडे में आएगी, फिर साइन करूँगा। ऐसे पहले आ जाते हैं बेटा, वो नहीं महीना पहले आ जाते हैं। 1 महीने पहले आ जाएगा, आपको मैं चिट्ठी कराऊंगा ना प्रोसेस। मैं तेरी मार दूंगा ना, तुम नहीं आया तो। वो एग्रीमेंट बन के आता है, तो एग्रीमेंट बन के आएगा, फिर वो साइन कराऊंगा, उसके बाद आपके यूरोट्रामा का तो वो भी होगा रजिस्ट्रेशन वेंडर को कंपनी में सोसाइटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करवाओ तो। ऊपर सब ऑक्सीपिटल भी एक बार नहीं है क्या? मेस्टर्ड रिट्रैक्टर एक ही है, ऊपर लगा लो। तो पहले ये जो सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं उनको सेपरेट करो, ऊपर और नीचे। C2 स्पाइनस ग्लव्स कहाँ तेरे? पहन लो। देखो ये यहाँ पे, दिस इज वेयर द टिप ऑफ माई थंब इज द C1 एंड जस्ट अबव द फोराmen मैग्नम और द ऑक्सीपिटल मार्जिन्स। अब तो मालूम है ना, मालूम है ना, मालूम है। ठीक है, चलेगा। एम्स के आने के बाद कम नहीं होगा कुछ? एम्स के आने के बाद हमारा अहमदाबाद वाला वो रुक गया है, हाँ, ड्रेनेज। जाने वाला ड्रेनेज वो कम। वो तो वैसे भी नहीं आता था कहाँ पे? आपके पास, मतलब जो अहमदाबाद जाने वाला वो तो भी नहीं, पर हो रहा तो बड़ा ही है ना, जोधपुर रुकता है, एम्स पे वैकेंट नहीं मिलता तो फिर वो घूमता है। आपने यहीं से किया हुआ ना नहीं नहीं, मैंने चित्रा से किया। कब? 2001 में कंप्लीट किया था। अच्छा, तो ऑलमोस्ट मेरे कंटेम्प्रेरी हो फिर तो। मैं 98 ज्वाइनिंग है। मेरे कंटेम्प्रेरी है फिर तो। आपका? मैं SGPJ से 98 जनवरी में ज्वाइन किया था, 2000 दिसंबर में कंप्लीट। 3 साल का है ना। अच्छा, आपने SGP किया? तो हमारे तो सन्नी वेरी दोनों के कॉमन पति हो गए ना। कॉमन पति हो गए ना, तुम्हारे भी हो गए श्री चित्र। अभी तो वही है। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है भाई साहब? सर एक्सपोज इनको सबको पहले फील करो बेटा, एक एक करके जो इन्होंने एक्सपोज किया ना, सब लोग फील करो। एनाटॉमी के लैंडमार्क्स, बोनी लैंडमार्क्स सब फील करो। जो C1 में जिसको डालते हैं उसको ऊपर लेंथ क्या थोड़ा ऊपर रखते हैं या बिल्कुल जाके ट्यूलिप उस पे जाके अटैच हो जाती है, मतलब ट्यूलिप जाके उसको फिट ही हो नहीं, ये डिपेंड करता है एक्चुअली एनाटॉमी पे सबके। हर पेशेंट्स की एनाटॉमी तो डिफरेंट होती है, इसलिए अपन सब 3D CT और ये सब कराते हैं। तो जो वर्टिबल आर्टरी है, आइडरी तो जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में करते हैं वो सब लोग तो इंट्रा ओप या तो नेविगेशन होता है उनके पास में, और या फिर उनके पास में इंट्रा ऑफ एंजियोग्राफी करता है, रियल टाइम एंजियोग्राफी। हाँ तो हाँ तो वो नहीं, एंजियोग्राफी करते हैं ये वाली नॉर्मल DSA वाली एंजियोग्राफी। तो उसमें वर्टिब्रल दिखा दिया आपकी कहाँ जा रही है, आपका स्क्रू कहाँ जा रहा है। एट द सेम टाइम यू कैन चेक इट, और नहीं तो नेविगेशन में आप चेक कर सकते हैं। लेंथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेंथ आप पहले एनाटॉमी पे देख लो कितनी लेंथ चाहिए आपको, और उसमें स्क्रू का भी कितने मिलीमीटर का ऊपर आपका जा रहा है, बेजलर इन्वेजेशन कितना है, तो उतने का स्पेसर डालो। हाँ जी, फील किया सबने क्या है? ये जो बेसिक फील है ना, वो दैट फील should memorize, you should memorize that is what is we call as touch memory, or the better than visual memory, or visual memory is also very good, but rather than learning the theoretical memory, this memory is much better when you feel it, so the next time when you will touch it you will immediately know. अभी नीचे तक का पूरा स्पाइन दिखाओ। ये सब ऑक्सीपिटल जो ये सॉरी C2 की जो मसल्स हैं, ये सेपरेट ऑल दीज मसल्स सब पेरियोस्टली,
हाँ लगा दो ना। एक मिनट बेटा, ये लगाएगा कुछ, इसमें तार जोड़ेगा, बीच में से मत लाना ना। कहाँ लगेगा ये? ये लो, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो ना, बोल रहे ना, सब बोलो, समझ में आए, सबको समझ में आएगा ना, सब एवरीबडी विल लिसन। नहीं, उधर तो मैंने बता दिया, इधर बता दिया, उधर मैं बता देता हूँ। चलो वो उधर इतना तो मैंने वहां पर करा दिया, मैंने करा दिया इतना तो, मैंने C2 स्पाइनस प्रोसेस। पहले ऑक्सीपिटल बोन को पूरा कर लो, वाइड एज वाइड एज पॉसिबल, ठीक है। फिर आप C2 को एक्सपोज कर लो एज वाइड एज पॉसिबल। फिर फील करो C1 को, और C1 को एक्सपोज कर लिया। फोरमन मैग्नम पे मत आना, ठीक है। फोरमन मैग्नम पे जैसे तो आपने यहाँ एक रिट्रैक्टर लगाया और यहाँ एक रिट्रैक्टर लगाया, फोरमन मैग्नम अपना आप खुल जाएगा। सो 80% केसेस में आपको फोरमन मैग्नम का डिसेक्शन ही नहीं करना पड़ता। नहीं तो क्या आपने कुछ किया मोनोपोलर या बाइपोलर या कुछ स्प्लिट करके, तो ऑटो वो ड्यूरा को ब्लीड करने, मतलब वो करने लग जाएगा, ऐसे फ्री होने लग जाएगा सिस्टर्न मैग्नम से। तो बेसिकली क्या करो, आप यूँ जाओ और पहले इसको पूरा एक्सपोज कर लो। इसके ड्यूरा के ऊपर देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन which is the posterior occipitoatlantal membrane, although it is very thin but it is there. So when you dissect the, feel the C1 tuberculosis. So एक सेकेंड, so ये जो है ना, you expose it right up to the lateral joints here, you expose this right up to the lateral joints here, then you expose this portion, right? Huh? You expose this entire thing, okay? And I feel that there is a possibility that this should be C1, so the occipital bone is not exposed right now, right? So what you have to do is expose the occipital bone, and then this is C1 and this is C2, right? So just expose first the occipital bone before coming to foramen magnum, because you don't know the depth of the foramen magnum. Yes. And you don't know whether C1 is bifid or not. So never come to C1. First expose the entire occipital bone, expose the entire C2, and then you come to, with bipolar you come to C1. Got it? And here we can feel the C1 tubercle also. So gradually dissect these muscles, and this always this, you when you put this mustard, this teeth should be on the bone. This should be on the bone, so it will automatically dissect the subperiosteal muscle separation like this. ये भी, हाँ ये ले, इससे आएगा। ये कॉब ले ले, कॉब बट ये, हाँ कॉब के साथ करके, और नीचे हमेशा पहले, जैसे अभी डॉक्टर संजय ने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीपिटल पूरा बोन वो करो, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द एनोमलीज व्हेन वी गो फॉर CV जंक्शन, मोस्ट ऑफ द एनोमलीज द ऑक्सीपिटल बोन इज इनकर्व्ड, and in many patients the C1 is assimilated, occipitalized. So then we have the problem to identify the atlas. सर वो कनेक्ट माइक्रोस्कोप हाँ कर दो ना। कहाँ तक पहुंचे? C1 नहीं, C2 देख लिया क्या? सब पेरियोस्टियल करना है? दूसरा अपने को मैस्टोड लिए सकना, कहीं से मैस्टोड करना। When we dissect the subperiosteal muscles from the periosteum or of the any bone, always try to go near the bone, as close to the bone as possible,
So we are not going to injure the soft tissue because there is a gap, interlaminar gap is there. So if you try to dissect the muscle in between the interlamina, you might going to injure the spinal cord also. So just stay over the bone, feel the bone and then gradually dissect the muscle from the bone. बॉडी में आर्टरी की जान निकाल रखी है खाली, मतलब कुछ है ही नहीं। तो क्या है, और इसमें देखना टेक्निक्स ऐसी होती है, मैं इसमें थोड़ा ओपनली मैं कहता हूँ, मेरे को ना मैं ज़्यादा आई डोंट मिन्स वर्ड्स, मुझे ना थोड़ा इरिटेशन। यहाँ लोग आए वो टेक्निक सीखने, जब वो जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है यार ये तो ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है करने में। To make it easy, ऐसा नहीं होना चाहिए, to make it palatable. ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है। नहीं, दो ही चीज़ हो सकती है, दो ही चीज़ हो सकती है, ये देख के गांड पड़ सकती है कि नहीं कर सकते, ये नहीं करने का, और या फिर मैंने तो एक चीज़ देखी सर, अगर आप बुक के साथ चलोगे ना, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जहाँ बुक की लाइन छोड़ी, my single line dialogue for last 20 years is anatomy is GPS per surgeon. That's only thing. आपने जहाँ बुक से डाइवर्ट हुए आप, हर चीज़ दिखी बुक में। प्रॉब्लम क्या है? वो अभी कनेक्ट कर रहा है माइक उसको, नहीं ये वहीं से वो कर रहा है, ये उसका है कैमरे का। C2 पे आ गया क्या बेटा? और अब आपको क्या करना चाहिए? अभी हमारा इसमें एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ आवर लर्निंग टुडे हियर? Exposed to C1, C2 joint. C1, C2 joint, right? Lateral muscle. So when you dissect the muscle from the C2 spinous process and the C2 lamina and C1 lamina, go gradually, slowly, and go as lateral as possible. One step at a time. The first step is only what I told you. Just expose. I'll tell you the trick. The trick is, where is the other one? नहीं, इसको मत करो, माइक हटा दो। No problem. क्या? तो ये सारा जो खेल, इसमें आपको ज़्यादा सब पेरियोस्टियल सर्जरी में भी नहीं करना पड़ता। देखो आप ऐसे जाओ, ठीक है, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा मेरे को ध्यान दो, थोड़ा सा आप सुपरफिशियल हो जाओ, ठीक है, यहाँ थे अभी, अब यहाँ हो जाओ, ठीक है। जैसे आपने ये किया, देखो ये अपना भी सेल्फ डिसेक्शन करेक्ट होगा। समझ में आई बात आपके? तो ये सारा खेल रिट्रैक्टर का है, आपको ना टाइम नहीं लगेगा। अब ये कर लिया, यस, समझ में? अब क्या हुआ, आपका ये एक्सपोज हो गया, अब इसको आपने पूरा कर लिया, ठीक है। फिर आपने इधर लगाया है नीचे की तरफ, थोड़ा सा इसको काट दिया, और तो ये आपको मिल गया। जैसे आप हुआ तो ये सेल्फ डिसेक्शन हो गया, बीच को छोड़ देना। फिर जब ये सेल्फ डिसेक्शन हो गया, ये सेल्फ डिसेक्शन है, दो रिट्रैक्टर लगाए तो बीच का वो अपना आप स्प्लिट ओपन हो जाएगा। आपको ये सब बीच में करना ही नहीं है, फोरम एंड मैग्नम को खोलने की जरूरत ही नहीं, वो अपना आप कट यू विल सी सॉफ्ट टिश्यूज में अपनी इलास्टिसिटी से वो इट विल गिव यू वे। यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द स्टाइल। तो फिर टाइट हो गया लाइफ सर्जरी में, तो लाइफ सर्जरी में और भी फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो फॉर्मलाइज्ड है ना। इतना ये वैस्कुलर होता है, आई थिंक 10 ml का ब्लड लॉस भी नहीं होता। मैं लास्ट टाइम सर्जरी आई वाज देयर ओनली 10 मिनट। ये सब तो ये कभी इधर मत जाओ, ये जो यहाँ तक गए ना आप, ये लैटरली शुरू में कभी नहीं जाना, पहले आप सारी एनाटॉमी एक्सपोज कर लो, फिर लैटरली, ठीक है, क्योंकि अभी आप चले गए। और हमेशा आपका फोकस हैज टू बी, देखो अब आपने यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे वर्टिकल आर्टरी आ गई और यहाँ पे आपको इंजर कर दी वर्टिकल आर्टरी, आपके समझ रहे ऑक्सीपुट और C1 के बीच में। सो एवर देखो ये वर्टिकल आर्टरी, देखो दोनों तरफ दिख रही है, देखो बेटा माइक्रोस्कोप दे दे, हो गया तो। नहीं, ये देखो ये वर्टिकल आर्टरी है, देखो ये वीनस दिख रहा है ना, ये हिंट होती है वर्टिकल आर्टरी की, ये हिंट इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे है, समझ में? तो ये एक्सपोज नहीं होनी चाहिए शुरू में, समझ में? देखो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, पैरावर्टिकल वीनस प्लेक्सस, ये हिंट कर रहा है कि इसके जस्ट नीचे वर्टिकल आर्टरी मिलेगी आपको। जब हम वर्टिकल आर्टरी मोबिलाइजेशन में करते हैं, फार लैटरल एक्सट्रीम लैटरल में, ये हिंट है। तो यहाँ तक आपको नहीं जाना है, आपको फोकस करना है कहाँ, इन दोनों के बीच में, नॉट ऑन दिस पॉइंट। सो नाउ ये कर लिया आपने। अब एक रिट्रैक्टर का खेल बताता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्या करो, यूँ जाओ, नीचे जाओ और थोड़ा सा नीचे चले जाओ, अभी आपका पूरा एक्सप्लोड हो गया, देखो। So just with a little play of retractors, you have actually exposed your own everything in 30 seconds. Do you understand what I mean? So focus on C1 and focus on oxygen. Now you have C1, C2 and this. Now you can go lateral. Right?
Now gently with bipolar go lateral and while feeling that Boom. because otherwise क्या थोड़ा भी monopolar वहाँ लग गया तो एकदम vertebral artery उड़ जाएगी. And it has happened. It's not like it's not happened. So समझना. क्या हाल है? वो रिटेक्टर दूसरा लाया ना, एक चौड़े वाला मैं लाया था, वो कहाँ चला गया? अभी अपन को अगर C1 C2 हमारा फोकस है ना, तो हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना. ये थोड़ा सा टिश्यू ये देखो, ये एक्चुअली रिटेक्टर मतलब अटक नहीं रहा ना. हाँ, टिश्यू हटा लो तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा. इसीलिए से टिश्यू हाँ, और रानिया जी क्या हाल है? वो बेटी भी आई हुई है. अभी इसमें बिकॉज दिस इज अ कैडेवर, सो यू कैन फॉर योर ओन कन्वीनियंस यू कैन डिसेक्ट डाउन ऑल्सो टू क्लियर द एनाटमी इन योर ब्रेन, but always consider anatomy every time 3D. 3-dimensional view should be in your mind all the time, like GPS. I always say the anatomy is GPS for we surgeons. Anatomy is the basics. If you know the anatomy and if you know the investigation beforehand, the anatomy, how the vertebral artery is going, how the joint is tilted, how much joint is lateral. So then you, while you seeing the real surgery, you can find out the, and you can correlate with it. हो गया? हो गया? तो छोड़ देना, हम करने दे काम, इसको छोड़ दे, नहीं लग रहा तो. ये बहुत बड़ा है यार, इससे छोटा नहीं है. ये तो वेटनरी वाला है. सो नाउ ये ऊपर लगा लो सुपरफिशियल करके उसको. सुनो, अभी एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ. अगर जैसे अपन को अभी, because this is a cadaver and we are here to learn things, I don't suggest to do in patients, but now we can increase the incision and we can increase the muscles splitting down, as Dr. Sanjay Bihari has said, that this is the, when you put the retractor, just put before that just slight subperiosteal muscle dissection and then dissect with the retractor. So there will be self dissection. क्या है? क्या है? उसमें जब आप मेरी थी टेबल वो वाली, ठीक है, ये वाली माइक्रोस्कोप लगा है ना, ये टेबल थी मेरी. पहले कम थी टेबल, बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि स्टूडेंट्स कम थे पहले. टेबल इतनी थी, स्टूडेंट कम थे. स्टूडेंट 161 थे, अब 280 के करीब हो गए. कितना 250 स्टूडेंट है? 280 है अभी तो 250 है. 250. एक काम करोगे, मेरे को एक फोटो बताओगे, यहाँ से मिलोगे एक फोटो. अरे अरे फोटो ले लोगे. हाँ हाँ. और मुझे व्हाट्सएप कर दो. व्हाट्सएप तेरे पास नंबर है क्या सर का? यहाँ से. हाँ हाँ. सुनो, आप अपनी टेबल पे जाओ, फिर चलो अपनी टेबल, पुराने गर्लफ्रेंड्स को भेज दो. अपनी टेबल पे जाओ. तेरे पास नंबर थोड़ी है? नंबर है क्या सर का? नहीं. मैं कह दूँ, मैं मेरे फोन से खींचता हूँ. फिर मैं मेरे फोन से खींचता हूँ ना. इसके राजेश के पास नंबर नहीं है आपका?
पेनोरमिक, पेनोरमा, गब्बर, गब्बर बीच में होना चाहिए अकेला। आपकी टेबल पे जाओ, आप टेबल पे खींचते हो। माई गुड ओल्डन डेज। All my previous 7 girlfriends. सेवन उत्तरी है, सात सात पटा रखी थी। पटी भी सभी हैं। अभी भी इधर आओ, इधर टेबल पे, आपकी टेबल पे खींचता हूँ। माइक नहीं, नहीं। पे आप गड़बड़ करते हो। नहीं नहीं, टेबल टेबल पे खींचता हूँ आपकी फोटो। इधर देखो, ये मेरी टेबल थी यार। मेरा सेकंड टेबल दोबारा से बोलो। This was your table. This was your table where you dissected in first MBBS. नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया, वीडियो बना के। नहीं, उसमें नहीं है वो, नहीं, मैं नहीं भेजूंगा ना किसी को भी। मत करना यार। अच्छा ये तो समझा कर डिलीट कर यार। नहीं, कुछ नहीं, उसमें नहीं, उसमें कुछ नहीं है सर। यार जोक की बात नहीं है यार, तू समझ नहीं रहा यार। मेरे लिए मेरी नौकरी चल जाएगी भाई बड़े। मेरी भी ले लो सर। हाँ, अभी लेता। मेरी नौकरी चल जाएगी। प्लीज यार हटा दो। आपके साथ लोग मेरी। नहीं डिलीट कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा ये तो ठीक है फोटो। हाँ फोटो ठीक है। हाँ जी, क्या दिखा बताओ। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? सर जॉइंट के पास ही है। डिसेक्ट करो, लेटरल और डिसेक्ट कर लो। नीचे और ऊपर की मसल जब तक फ्री नहीं करोगे ना तो रिट्रैक्ट नहीं होगा। इधर आना, इधर आ, यहाँ पे इधर इसको फील कराना सब। फील करो बेटा सब। Occipital bone, this is the occipital bone, it is ending into the occipital margin, this is foramen magnum here, and then below is the this central arch like, और जैसे चूड़ी होती है ऐसा है ना, चूड़ी की तरह दिखती है C1, पीछे की तरफ आपको दिखेगा C1 ट्यूबरकल दिखेगा, बहुत सारे पेशेंट्स में दिखता है, and below that is the C2 spinous process which is bifid. ये चालू कर देना माइक्रोस्कोप बेटा, चलो आगे लो ना, ये माइक्रोस्कोप ले लो ना आगे। नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हो, फोकस नहीं हो रहा होगा। ऑन करना है इसको। वीडियो बना देना, बोलूंगा ना जब, बोलूंगा जब। हटा प्लीज मेरी ना नहीं, अरे नहीं, आप क्यों एक तो जोक करना एक होती है। दुश्मन हो गया मैं, आप सोचो तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो यार। कुछ नहीं होगा। ये अभी C2 के बाद डिसेक्ट कर लिया मैंने, इनको बोला थोड़ा सा अभी, बिकॉज दिस इज अ कैडेवर सो यू कैन एक्सटेंड द इंसिजन। अभी C2 पैल्पेट हुआ, C1 हुआ, जॉइंट सर। C1 C2 जॉइंट पैल्पेट हो गया ना। अब वो वीनस प्लेक्सस दिख रहा है, ठीक है।
बाइपोलर से बाइपोलर करेंगे, तो बाइपोलर को कोएगुलेट करो और नेवर मोनोपोलर मत यूज करो, ठीक है। तो बाइपोलर से आगे देखो, यहाँ बिल्कुल आप पहुँच गए, परफेक्ट पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे कैसे ये नहीं है, ये है ना, ये नहीं, ये नहीं, आपको ये है, हाँ, तो वो क्या है, आप vertebral artery will always be lateral to the facet joint. It will never come medially. Are you understanding? सर कोई डर नहीं है. If you are between C1 and C2, then you can go to lateral joint with bipolar. But over C1, you cannot go more than lateral joint. But where the vertebral artery will curve inside. ये कुछ नहीं है, वो वहाँ पे, अब जब तक आप वो facet joint पे नहीं पहुँचे, foramen transversalis is lateral to the facet joint. तो जहाँ पे ये इसको lateral mass कहते हैं, ये lateral mass. ये जो square दिख रहा है ना, ये इसको आप dissect करोगे ना, तो काफी चौड़ा है. ये पूरा का पूरा dissect करो, जैसे कि C2 का पूरा देखो, ये मान ला रहे हैं. ऐसे रखो, ये देखो आप इसमें दिखाते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये लैटरल मास आपकी बात सुनो, और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपकी बात सुनो है ना, तो ये लैटरल मास है यहाँ पे और ये पार्ट है. अब इसको इस मसल को थोड़ा हटाओगे ना बाइपोलर से, तो आपको ये पूरा का पूरा, और इसको भी काटो तो आपको यहाँ पे पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा. तो अभी थोड़ा ब्लर होता है, हाँ, तो देखते काटो, और मोनो बाइपोलर कौन दे रहा है ये एक तरफ का किया ना, एक मिनट देखना. हाँ सर. किस तरफ का क्या है? लेफ्ट साइड में. This is the facet, or this is the facet of the C2 and this is the C1, right? And जो सर बता के गए अभी, वो ये आप इसको पूरा सब मसल पूरा डिसेक्ट करते जाओ इसको, so है ना. अब now what is there in this thing is the हाँ, occiput C1, this is C2, this is C1 C2, and then this when you go lateral, just subperiosteal, slowly, or as sir said that with the bipolar, because the bipolar will not transmit the heat, the monopolar will transmit the heat to the soft tissue also. And you know, below this is very important thing is the spinal cord. So you just feel with the feeler or this thing that where is the, or you can localize it on the CM also at the same time if you have. So you have, because this is the cord going here and this is the joint here. Here is the joint, you can see here now. If you have CM, you can localize it from here. Aditya, sir, we have dissected here the C1 C2 joint. I put the filler inside, and I put the filler at the facet joint, so they can feel it that this is the C1 C2 facet joint, or the above is the C1 lateral mass and below is the C2. And अभी एक्चुअली म्यूटिलेट हो जाते हैं बॉडी. ये माइक्रोस्कोप ले सकते हो सर, इवन या जो where the I put the filler is not the facet, it is the facet joint. So we can see it on. अब एक होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने क्या बोला था, फॉलो द मीडियल बॉर्डर. Yes. ठीक है, अब आप देखो, If you सर माइक्रोस्कोप लगा दो तो So what you have to do is, ये जो पूरा का पूरा है, this all soft tissue, which is just lateral to the medial border, from here to here. When you remove, सर एक बार माइक्रोस्कोप लगाएंगे उसमें और क्लियर पता सबको दिख जाएगा ना सर. सबको दिखना है. हाँ, नहीं इस पर लगा लो ना, ये वहाँ पे सामने दिखेगा ना सर, वो वहाँ पे स्क्रीन पे. अब देखो सर, आप इधर से आओ, यहाँ से देखो, ये आई पीस का अपना आईपीडी कितना है आपका, कर लो. ऊपर नीचे सर इसका वो नहीं है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको, फोकल लेंथ को आपको अपने हिसाब से करने के लिए.
नहीं, इसको ये है मैग्नीफिकेशन के लिए सर, आप कर सकते हो अपने हिसाब से करके देखो सर। पीछे उधर का आ रहा है वो। हाँ, वो सामने मेन स्क्रीन पे आ रहा है ना सर, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ 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 जी, हाँ जी। देखो अब मैं ओरिएंट करता हूँ आपको। देखो ये ऑक्सीपुट है, ठीक है, वो ऑक्सीपुट है, ठीक है, दैट इज द ऑक्सीपुट, दिस इज C1, right, and this is C2 posterior tubercle, got it? So you should not come here because this is where the vertebral artery is. As soon as I dissect here, you will get the vertebral artery here. Okay, can I have an artery forceps? Is there a no artery, a forceps, any forceps? No forceps. Okay, then give me a dissector. So you see, if I dissect this point, the vertebral artery is right here. ये देखो हो जाएगी वो वर्टिब्रल आर्टरी, इधर इधर दिखेगी आपको वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये देखिए वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, इसके ऊपर पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस होता है। नहीं, एक मिनट, मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूं। सो दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी व्हिच इज गोइंग इनटू फोराम एंड ट्रांसोसेरियम हियर। हाँ, ठीक है, तो उधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये तुम्हारा ये वर्टिब्रल आर्टरी है। हाँ यार, ये इसको एक मिनट होल्ड करना यार, यहाँ पे उस माइक्रोस्कोप को। तो देखो मैं ऐसे जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, एक मिनट यार, इसको रोकना, एक मिनट, इसको फ्लोट। So this is the vertebral artery and there is C1 nerve root. Can you see the C1 nerve root over the vertebral artery? ये दिख रही है white शायद दिख रही है ना, ये ऑक्सीपुट और C1 के बीच में C1 nerve root है। ये हिंट करती है कि इसके जस्ट नीचे वर्टिब्रल आर्टरी, यहां डिसेक्ट करोगे ना तो आपको पूरी वर्टिब्रल आर्टरी मिल जाएगी, और ये यहां फोरामन ट्रांसोसेरियम में जा रही है इधर। अरे बात समझ, तो जब मुझे कुछ करना पड़ता है ड्रिल, तो आई ड्रिल हियर, सो आई विल गेट द एंटायर वर्टिब्रल आर्टरी फ्रॉम हियर टू हियर इफ आई हैव टू मोबिलाइज इट। डिड यू गेट इट? But we are not interested in this. This is just a game which I am playing, but actually this is not what our mandate today is. Got it? So you don't have to expose. You have exposed this. Then this is the C2, right? So on C2, you have exposed the entire, this square is this square. Can you see this square? Huh? So this square is where your thing is. And now you follow the medial border. Just let me come a little down. ये ऐसे rotate हो जाएगा क्या? थोड़ा ये mic, हाँ. हाँ, यूं बस नहीं, वो पीछे नीचे से इसका ना फुट पेडल लॉक नहीं किया हुआ। एक सेकंड, मेरे को ध्यान देना एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं एक मिनट में कर रहा हूँ यार, ये ना ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है यार, एक मिनट रुक जाओ। लाइट ऑफ हो जाती है सर। एक सेकंड, क्या थोड़ा पीछे होना, मेरे को यहाँ जगह नहीं मिल रही, एक मिनट, आपके पीछे जगह नहीं मिल रही, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक मिनट। Now I'll do. Wait. वो नहीं है सर इसमें, क्योंकि ये तो मैं इसमें लेना लैब के माइक्रोस्कोप का सर। इसको हटाई दो सर, प्लीज। नहीं, ये नहीं है, ये तो लेंस चेंज करने के लिए, टाइट करने के लिए है। ऐसे करो, इसको ऊपर कर लो, एक मिनट ऊपर कर लो, ये ऊपर से खोल के लिफ्ट कर दो, खोल के लूज करो बेटा, लूज। नहीं तब पूरा टाइट नहीं, सारों को थोड़ा थोड़ा अब ये देखो, अब आप ये देखो, कर भी नहीं लेट आया ज़्यादा लंबा हो गया। ये आपने एक्सपोज कर दिया, लेकिन मार्क तक एक्सपोज कर दिया, नहीं तो 42 है, ठीक है ना?
एक्सपोज करो, ठीक है? इसको मत कर यार प्लीज, ऐसे मत। इसको एक्सपोज करोगे या इसको एक्सपोज करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप फैसिक जॉइंट कर पाओगे। हमारी बात सुनो, तो ये मीडियल बॉर्डर जो है, ये इस मीडियल बॉर्डर, देखो यहाँ फील करो, ये देखो यहाँ मीडियल बॉर्डर आएगा, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये देखो इधर कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगाओ उधर, और नहीं वो ड्यू रहा है, ये देखो ये आगे बात है, दैट इज पार्ट्स एंड पार्टिकुलर, आगे बात समझ, वो एक्सपोज करो, करो। अभी जो सर बता के गया एक बार इसको करने दो, देन वी विल ओरिएंट, रीओरिएंट। ये वाला मीडियल बॉर्डर है। संग्राम अब बाकियों को एक एक, सब लोगों को एक बार देखने दो। एक बॉस एक मिनट का मतलब एक मिनट काटो मत, सबको ओरिएंट कर दो, एक मिनट काट मत, सबको एक मिनट, सब जो है माइक्रोस्कोप में देख के ओरिएंट करो। अगर कुछ चीज, हाँ इधर से देख बेटा, माइक्रोस्कोप से देखो, यहीं पे रखो, उसको चेंज करोगे फिर तुम्हें चेंज होना पड़ेगा सारा। एक एक करके देखो, सब ओरिएंट करके बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अभी जो बता के गए हैं वो उसको नहीं नहीं, ऑक्सीपिटो C1 को तो छेड़ना ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो कॉन्डाइलो या ऑक्सीपिटो C1 एटलांटो जॉइंट है ना, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, दैट जॉइंट इज वेरी कर्व्ड। जैसे कल मैंने बताया था, सुना था तुमने, कप चाय का प्लेट में रखते हैं अपन, हाँ सॉसर कप के जैसे। सो दिस जॉइंट इज लाइक दिस, एमुलेटेड लाइक दिस। दिस इज द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड दिस इज द C1 लेटरल मास का facet joint. So it works like this and like this only. So if you go there, then you are going to injure vertebral artery, because from here, from where the foramen transversium, the vertebral artery passes, and then from there it becomes intracranial, right? So once it becomes intracranial, that is the point where you can injure it also if you go above. So you have to be careful at that point also. Sir, they are asking about if do we have to go to occipitoatlantal joint? No, no, no. No, no, no. There's no need to go to. Yes, that's what I told them. You have to go to. You give your expert opinion. तो एक मिनट, अब दिखाओ कहाँ है? एक मिनट इसको। हाँ। बिल्कुल सही है। तो अब क्या है? वो दिखाना मुझे नहीं, दूसरा सेक्टर देना। देखो अब This sector. तो अब ये है ना, ये तो ये देखो, ये है, ये आपका पार्ट्स आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पार्ट्स आ गया, ये देखो इधर देखो, देखो ये इसका एक रूल ऑफ 4 होता है। क्या होता है? मीडियल बॉर्डर इज हियर, गॉट इट? हाँ, पार्ट्स का मीडियल बॉर्डर इज हियर, गॉट इट? नहीं, यू कांट सी देयर। वो उसमें सेंट्रल नहीं है। फिर एक काम करो, इस माइक्रोस्कोप को ऊंचा कर दो, जिससे मैं इसमें दिखाऊं डायरेक्टली। और कर दो, ऊपर कर दो, और ऊपर जाकर लाइट बस बस इतना। अब एक मिनट मेरे को पहले जगह दो, एक एक करके मैं 2 सेक्शन दिखा दूं, पहले मुझे आना है। साइड में आ जाओ थोड़े। आप इस तरफ आते जाना, 4-4 करके। नहीं, एक सारे सामने आ जाते हैं अपन, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, ये क्रिटिकल स्टेप है, इसमें 4-4 देखो, बाकी हट जाओ, आप पहले 4 देखो। ये देखो, इधर देखो, अंदर 4 आ जाओ। नहीं, आप रुक जाओ, नहीं 3 ही है, 3 देखो, 3 देखो, ये देखो, फील करो। हाँ देखो, एक मिनट ध्यान से देखो, ये जो है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। जब इसको यूँ फॉलो करोगे तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आप इसके मीडियल बॉर्डर को ट्रेस करते जाओ, ठीक है ना, आगे बात समझ, यहाँ पे जॉइंट समझ में आई? तो
जो जो दिखाना है वही दिखाएंगे। क्यों 11:15 11:30 तो तुम पंटर दोस्त करने पकड़ लिया उधर को, बस तो मैं इसलिए से बच के निकला हूं उनसे। वो बहुत मलिन आदमी है। मैं तो जानता हूँ ना, इसलिए तो मैं तो इसलिए दूर रहता हूँ उनसे। उनको इधर पकड़ना तो छोड़ते नहीं और मारते बहुत हैं उनसे। नहीं वो तो ठीक है, वो सारी चीज़ ठीक है, प्यार व्यार सब ठीक है, ज्ञान भी तो देना हमें। ज्ञान नहीं है उनके पास। तो सर डू वी सब एक बार कर लो, एक एक करके धीरे धीरे। दिस C2 नहीं ऐसे नहीं, पहले उधर से आके करो। देखो हमेशा देखो है ना, ये देखो ये पैसेज जॉइंट है ना, दूसरा पैसेज जॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की क्या है, पार्ट्स है। और मेडिकल क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाते थे हमेशा, इतना सा एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है, मीडियल बॉर्डर को ऊपर की तरफ ट्रेस करते जाना है। जैसे आपने ऊपर ट्रेस किया तो अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर चलते गए तो अपना आप जॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप ये सॉफ्ट पीस निकालो, ये वाला सॉफ्ट पीस जो रखा है ना, ये वाला सॉफ्ट पीस, ठीक है, तो आपको जॉइंट आ जाएगा। सर आप ये बात समझ में आ गई? आपको CM अंडर गाइडेंस अच्छा रहता है। कोई सियाम से करना, ठीक है। आगे आगे बात समझ करो। अब वो एक एक करके एक बार अपना फील कर लो जरा कि कैसे करना है। Even for beginners, no, not CM is not good. So, yes sir. माइक्रोस्कोप में एक्चुअली फोकस नहीं हो पा रहा, फिर वहाँ सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। सब लोग फील करके वो देखो, पहले इसको अकेले को फील मत करो, ऐसे साथ में फिंगर के साथ में फील करो तुम कि C1 जॉइंट कौन, C1 बॉडी कौन सी है, लेटरल स्पाइनल क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स स्पाइनल। एक बार ना मैं मास्टर कैटेगरी पे मैं सबको इधर डेमोंस्ट्रेट कर देता हूं। ये रहा साढ़े 4 को ना भी 10:30 बजे जाना है। ये एक सेकंड सब लोग, मैं एक सेकंड में इधर डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं ऑन द कैंडल। एक सेकंड इधर आ जाओ। या एक सेकंड साइड में जो सारे आ गया एक सेकंड। उधर देखो, सब स्क्रीन पे 1 मिनट देख लो स्क्रीन। सब लोग स्क्रीन पे देखना प्लीज। दिख रहा है स्क्रीन? वो दिख रहे हैं क्या, वो पार्ट्स और फैसेट दिख रहा है? नहीं इससे बट अब दिख रहा है? अब ठीक है? नहीं कोई बात नहीं। अब एक सेकंड ना, 1 मिनट आप हटना, मेरे को देखना दो उधर। ओके, अब एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो उधर देखो, हाँ ये देखो, ये जो है दिस इज द C1 आर्च, राइट? यस, ओके, जस्ट कीप सेइंग यस। एंड दिस इज व्हाट? पोस्टीरियर ट्यूबरकल, यस। देन देखो, नेवर गो बिटवीन ऑक्सीपुट and C1 arch because this is where the vertebral artery is. Can you see the vertebral artery here? Okay, can you see the vertebral artery here? एक सेकेंड, अब देखो, yes or no? अच्छा, okay, never mind. Okay, I'll show it later. Now this is the dura, yes or no? Yes. हाँ, so this is dura. Now this is the C2. Right, this is the bifid spine of C2, this is the lamina of C2, and this is the lateral most part of C2. Beyond that is foramen transoserium. Yes? Can you see it? Yeah, so be a little louder so that I know that you have seen it. Right? Now, this is this square piece of bone. This square piece of bone is the lateral mass of C2. Got it? Normally what we do is, when we dissect, we only dissect up to this point. When we are doing a laminectomy, just go a little beyond that and foramen transoserium will be lateral to that. Got it? Huh? What you have to do is,
go on dissecting medial till you reach this part of the bone. Got it? So you are going a little above, and this part of the bone is the pars interarticularis between the superior articular facet and the inferior articular facet here. Got it? Up ठीक है? Now you can see. So again I will show. Yes, go. So this is the lamina. This is the lamina of C2. This is the lateral mass of C2. Got it? Normally when we doing a laminectomy, we only expose up to this point. So then what you do is you come, just feel here, and the foramen transversarum will be lateral to the lateral mass. So you just stop here. Okay? Then follow the medial border. You see this is this dura. You see this is the dura, and you just follow the medial border. This is the pars interarticularis. Can you see the pars interarticularis now? Okay? This is the pars interarticularis. And if you remove this soft tissue, it will lead to the joint. Did you get it? Everybody got it? Then you just do it now. Okay? Just remove that soft tissue and come to the joint. Please remove the soft tissue. Nahi hai nahi. Got it, everybody? Huh? So just remove that. Just follow the medial border of C2. It will lead you to the joint. Superiorly. Huh? Superiorly you follow it. It will lead you to the joint. Very simple. Just usko. It's a 2-minute job. There is nothing to it. It's a very simple thing. आप इतनी जोर से मत करो. मैं सोचता हूँ कोई स्टूडेंट मेरे से हाँ में ला रहा है. अच्छा हुआ मैंने सुना नहीं, तो अभी उसकी जान निकाल देता मैं. नहीं वो सब कॉम्प्लेक्स मत कर. देखिए एक छोटी चीज मैं बताता हूँ. पहले उसको बेसिक चीज सीख जाने दे. अब तो साइकिल किसी को चलाना सिखा रहा है और फिर बोले कि तू ऐसे भी गिर सकता है और ऐसे भी गिर सकता है, वो अपना भी सीख लेगा, गिरेगा कैसे, समझ में. वो उसको सिखा दे पहले. वो फिर वो क्या होता है, एक नेचर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ये मैं कहता हूँ ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशंस में यू शुड बी वेरी सिंपल. लेट देम अंडरस्टैंड. फिर उसके बाद में वो अपना भी समझ जाएंगे बाकी चीजें. बिकॉज क्या है ना, nature follows, every stream follows the path of least resistance. They will all automatically, it leads you to the conclusions. Do you understand what I'm saying? तो पहले मत ये सब करो, ये हो जाएगा और वहां वो हो जाएगा, ये बिग मिस्टेक ना. कोई बात नहीं, I भी रहे, कोई बात नहीं. I'm not what I'm trying to say is always, you know, when you're showing, first let them understand the technique. As soon as फिर आप बताओगे अच्छा ये वर्टिबल है, ये है, फिर उनके एकदम within 30 seconds they will understand everything because they're all brilliant people. So don't underestimate their intelligence ever. We have to actually make them see the road. आप कहते हो ना कि मुझे जवाहर नगर से SMS आना है, तो आप क्या बोलोगे, क्या डायरेक्शन दोगे मुझे? आप पहले जवाहर नगर से नहीं, सॉरी आपको पता नहीं है, आप जयपुर के नहीं हो, आप बोलोगे पहले बिरला मंदिर आओ, ठीक है, शांति पथ पे, फिर बिरला मंदिर से मुड़ना राइट और स्ट्रेट रोड है ना, स्टैचू सर्कल आओ, स्टैचू सर्कल से स्ट्रेट रोड लो तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल आ जाएगा और वहां पूछ लेना अंदर की गलियां, ठीक है, कि SMS क्या डिसेक्शन हॉल कहाँ है कि नहीं. तो आपको उनको मेन रोड्स बतानी है. वो क्या होगा, एक बार वहां पहुंच के तो वो पहुंच ही जाएंगे. अरे बात समझ, क्योंकि अभी तो शुरू में डिटेल कर देते हो ना तो वो क्योस हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है. स्टैचू सर्कल नहीं है. इसलिए शुरू से क्या है ना, इसका काम है गलतियां निकालना, ठीक है ना. जो असेंस नहीं समझना इसका फोकस रहता है गलतियां निकालो. ये लो यार, ये लो. नहीं मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ. जॉइंट दिखा देना उनको. आगे मिल गया जॉइंट, मैं दिखाता हूँ. हाँ अच्छी तरह से कर, रिट्रैक्ट कर लो C2 नर्व रूट को और वहां पे अब देखो कितना सिंपल है जॉइंट पहुंचना, है कि नहीं, है ना. इनकेडेवर ये
अरे नहीं नहीं इससे पहले रुक 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 ये रूट को देखो नीचे ले लो। नीचे ले लेना सुनो, तुमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया ना सब ये चीजें? सर C2 रूट है ये C2 रूट है, एग्रीड। और ये सर ये जॉइंट एक्सपोज कर अरे ये हिला क्यों रहे हो भाई? अरे हिलाओ मत ना, मैं देख रहा था बेटा। अच्छा ये सर ठीक है। ये फैसेट आ गया सर C1 अभी कौन पूछ रहा था मेरे से कि C1 और एटलांटस ऑक्सीपिटल जॉइंट को नहीं खोला? मैंने बोला था ना नहीं खोला। ये जो वर्टिब्रल आर्टरी जहाँ से दिख रही है ना, तो ये C2 टूट जा रही है जो इसने रिट्रैक्ट कर रखी है, और ये C2 लमाइना है। दिस इज C2 लमाइना एंड हियर इज द C2 लेटरल मास, राइट, एंड दिस इज द C1। एंड यहाँ से जो वर्टिब्रल आर्टरी जाएगी इन कर्विंग करके, व्हेन फ्रॉम द स्पाइनल कैनाल इट बिकम्स द intracranial here. So if you go near this joint, you are highly likely to injure this vertebral artery here. So you just have to, like this, you see this is the C1 tubercle in the midline, and this is the C1 arch. And if you go laterally, this C1 arch is incurving, like, can you see this? So you will find in every patient there will be some anomalous anatomy. So this is the joint, facet joint here. This is this where I am, this sector is here. This is the medial border. This is the medial border of the C2. This is the medial border. So you have to save the C2, the C2 nerve, and then put the from here. This is the facet joint. C2 nerve towards downward or upward? Wherever it is flexible, you do it, and try not to coagulate anything. Try not to coagulate anything as much as possible. अब तो अपन ड्रिल कर सकते हैं ना। ड्रिल कर सकते हो, बट सेविंग दी वर्टिब्रल आर्टरी, बिकॉज दी वर्टिब्रल आर्टरी ये पोस्टी आज का थोड़ा सा ये ड्रिल ये जो मैंने अभी निकाला ना, ये डिसेक्टर, यू एवरीबॉडी शुड कम एंड फील इट हियर। दिस इज द फेसेट जॉइंट, सी इट हियर। वो मैं अभी आपको इसमें स्पेसर डाल के दिखाता हूँ। इसमें ये जैसे स्पेसर डालते हैं, देन वी विल पुट द स्क्रूज आल्सो। सो नाउ सी दिस थिंग। हाँ, अभी ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू सी द बेसिक थिंग ओनली, that there is the C2 lateral mass, this is C1 lateral mass, and then we have to see the pars intra-articularis, separate the root, separate the venous plexus over the vertebral artery, retract the vertebral artery, and if sometimes the anomalous vertebral artery, we can skeletonize the vertebral artery and we can mobilize it. But it is the next step. Once you master into this practice, then again you can do that. Not now. Now you have to just और ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट C2 ये रूट अपन अभी ये जो खुला हुआ है वो जॉइंट है, देख सामने देख रहा है ये इसके नीचे। एक मिनट दिखाना, क्या बता रहा है? एक मिनट रुको। सर हाँ बताओ। इंफीरियर आर्टिकुलर ये देना। हाँ ये एक मिनट यार, ये अनफोकस हो गया है। ये सर इंफीरियर हाँ। आर्टिकुलर फैसेट ऑफ C1, यस, ये सर C2, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ C2। नहीं हो रहा है ये तो एक्चुअली। हाँ, नाउ टेल मी। यस C1 C2 जॉइंट, यस, C1 C2 जॉइंट, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ C1। या आपको एनाटॉमी में पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि C1 C2 जॉइंट कैसा होता है। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द C1 सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है ना। और C1 और C2 जो आर्टिकुलर सरफेस है वो उस पर कैसे अटैच होगा? जो C1 का जो लेटरल मास है, दैट इज लाइक दिस, इंक्लाइन लाइक दिस। It is C1 inferior lateral mass. The inferior articular surface is like this, and the C2 superior surface or the superior articular surface is like this also. So this makes it like this. So when we feel it here, this joint is like this, oblique joint. Yes sir. This joint is oblique joint. So if you want to put the spacer here, then you have to drill it a little bit and then see the joint, because you are very away from the cord here. The cord is over here. The cord is not there. Now you have to afraid of only the vertebral artery and the C2 nerve. Sometimes even if you cut the C2, although it can be problematic, but not very much. There will be anesthesia and there will be neuralgia sometimes later on. सर यहाँ पे काट दें अपन अभी? हाँ, ये इसमें काट सकते हैं, पर once you identify the things. सर अपन आइडेंटिफाई कर लिया, अब कट अभी वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ आइडेंटिफाई करी आपने? सर इस जॉइंट के पास ये- आएगी नहीं ना सर? ये क्या है? नहीं, ये जो लेटरल मास है ना, दी वर्टिब्रल आर्टरी इज ऑलवेज लेटरल टू द लेटरल मास, लेटरल टू द लेटरल मास। ये एक बेसिक कंसेप्ट बना के रखो, ऑलवेज लेटरल टू द लेटरल मास। सो वंस यू
you are up to the lateral mass, there is no problem. But still, I would suggest that in every patient you have to see the you can see the obliquity of the joint now here. ये तो क्लियरली है ये है ना, जो मैं बता रहा हूँ जैसे आपको ना, C1 lateral mass is like this, is oblique. अभी मैं उससे वो मंगा सकते हैं, बोन मंगा के दिखा सकता हूँ मैं ना, बोन्स मंगाऊं क्या? अरे मूल जी, मूलचंद जी, मूलचंद जी, बोन्स मंगानी है C1 C2, बोन्स सर C2 कट कर दिया उसके बाद अब बढ़िया एकदम हाँ, अब एनाटॉमी आपकी क्लियर हो जाएगी ना। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। हाँ तो बट ऐसा नहीं कि ये सीख जाओ C2 काटनी बाद में मरीज में काट दो। एक्सपोज करने के लिए हाँ, नाउ इट इज ओके। ये इसमें देखो, अब देखो वहां भी देखो, हाउ ऑब्लिक द जॉइंट इज, यू कैन सी इट। देखो इसमें देखो कितना सुंदर दिख रहा है। एक एक करके देखो, उसको छोड़ दे भी, तू दिखाता रहे, सब देखो एक एक करके, एक बार आओ देखो जॉइंट, द ऑब्लिकिटी ऑफ द C1 C2 जॉइंट, सी इन द माइक्रोस्कोप वन बाय वन, डोंट फाइट। मिलेगा कहाँ है मूलचंद जी? आ जाओ जॉइंट दिखाओ, C1 C2। ये देखो ऑब्लिक्विटी ऑफ जॉइंट, you can see it, feel it, put this dissector into this and then see the obliquity. Now he has cut the C2 root. इधर से आ जा, उधर माइक्रोस्कोप में देख, इधर आके ड्रिल है लगा रखी यहाँ पे, वो रखी नीचे, नहीं पहले ड्रिल से पहले आप C1 C2 जॉइंट स्पेस जो है ना, उस जॉइंट स्पेस में आप डिसेक्टर डालो, डिसेक्टर डाल के पहले डिसेक्टर डालो, डिसेक्टर डाल के उसको डिस्प्लेस करके ड्रिल लगा दे। है कौन से, कौन कौन है, नाम तो बता दो। अच्छा कहाँ है वो, चला गया? ये C1 C2 जॉइंट सब एक एक करके देखते जाओ, तुमने देख लिया तो आगे आ जाओ, दूसरे को आने दो। सब देखो, ये हमने C2 रूट काट दी है जस्ट टू डिसेक्ट द जॉइंट, टू सी द जॉइंट। वो यहाँ पे जो डिसेक्शन हॉल में वो है ना मूल जी, वो दे, एक मिनट बोला मूल जी। इनको सब लोगों को, सब लोग देखते जाओ एक एक करके बेटा, देखना आपको, अब देखा नहीं ना, माइक्रोस्कोप में देखो। अरे मूलचंद जी वो दो मेरे को, ये नहीं C1 C2 ये तो दे जाओ चलो कोई बात नहीं, वो लेके आओ। C1 C2 दे दो दोनों, यही ला दो ना। नहीं इसी पे दिखा देते हैं ना, एक मिनट उनको, ये देखो, ये देखो आप इधर देखो, यू सी नाउ हियर, this is the occipital condyle where the C1 fits, lateral mass of the C1 fits. You can see how it is curved inside and how it is means it is like just in a mountain, and when the C1 lateral mass is like this, is a plate, so this sets into here. So and from here the transversorium, the foramen transversorium, the vertebral artery comes from here and becomes intracranial, goes in front of the medulla and then joins and becomes the basilar artery. So from here it enters.
So we don't have to go up to the C1 or atlantocondylar joint. So we and the वो बोन मंगाई है मैंने अभी और इसमें दिखाता हूँ और फिर उसमें देखो आप लोग सब आपने देखा गो एंड सी द जॉइंट C1 C2 जॉइंट वो दिखाओ इनको सबको एक एक करके सब देखो आपने देखा नहीं नहीं एक एक करके दिखाओ ना भाई सबको देख नहीं पा रहे हैं सब लोग यार आजा चलो देखो देखो क्या हाल चाल है हाँ जी एक मिनट इनको दिखाओ नहीं 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 तुम खुद अपने हाथ से देखो ना इनको दिखाओ अगर आपने देख लिया तो इनको दिखाओ आप देखो माइक्रोस्कोप में देखो इनको बताओ ये जो ले एक मिनट इधर आओ, मैं बताता हूँ इसको इधर हो ना ये इन्होंने देखा नहीं अभी ये पीछे खड़े हैं बेचारे वो कह रहे हैं कि मेरे को रश बहुत ज्यादा मेरे को कोई दिखा नहीं पा रहा है ये देखो दिस इज C1 लेटरल हाँ नहीं वो फ्री वाली बोन चाहिए मेरे को चलो ये C1 लेटरल मास है दिस इज ऑक्सीपिट हियर this will be here will be dura and the occipito-atlantal membrane and this is the C2 lateral mass so and this is go up to the C2 medial border so this was the C2 nerve here C1 nerve will go above from here C2 nerve was here so we have cut the C2 nerve now you come little inferior and you can see the obliquity of the C1 C2 joint this is the C1 C2 joint this is the lateral mass of the C1 above you can see can you see it now you feel it with your hand हाँ आप चेंज कर लो ये देखो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो हम पीछे से जा रहे हैं ये देखो ओब्लिक अपने ओब्लिक जॉइंट दिख रहा है ना अपने को ये इधर से दिखाओ इसको देखो हाँ सॉरी पोस्टीरियरली अपन ये देख रहे हैं ऐसे अपने पास ये है यहाँ पे अपन है यहाँ से C2 रूट निकल रही है एंड द फोरामेन ट्रांसवर्सम हियर फ्रॉम हियर द वर्टेब्रल आर्टरी कम्स हियर एंड गोज हियर दिस इज द C1 जॉइंट के लेटरल अपन नहीं जाते you never go to joint lateral of the joint stay always medial to this thing medial to the C2 lateral body C1 lateral body so then put the screws here and here in C1 किसको इस पोस्टे आर्च के पार्ट को यहाँ से हाँ ड्रिल कर सकते हो आप ड्रिल करके बट आपको फिर स्क्रू लंबा डालोगे तो लंबा नहीं जाएगा ना फिर आपको स्क्रू डाला है तो फिर वो आपको बाइकोटिकल पर आपकी कोटेक्स तो आपने डैमेज कर दी यहाँ पे तो फिर वो परचेज नहीं ले पाएगा उतने ज्यादा है ना आप दोनों में स्क्रू डालोगे देन यू डिस्ट्रैक्ट इट सो द फेसेट जॉइंट विल ओपन सो वंस द फेसेट जॉइंट विल ओपन पहले से स्पेसर डालना फिर स्पेसर डालोगे ना जब फेसेट जॉइंट खुलेगा तभी तो जॉइंट खोल दिया नहीं पहले लेटरल मास में डालोगे आप दो स्क्रू डालोगे दो स्क्रू इधर डालोगे लेटरल मास में डालोगे रॉड डाल के डिस्ट्रैक्ट करोगे when you put the distraction here then you put the spacer here and then you loosen the distraction so it will hold the spacer in place what should be the size of the spacer it depends on the length of the dents above how much the dents is going up as a basilar invagination if it is 5 millimeter then put the 5 millimeter we want to reduce that odontoid tip from usually there are two things not only the cord you can stretch the vertebral artery also if the vertebral artery you are stretching you can lead to dissection of the vertebral artery then can lead to brainstem infarction and then so many things are there keep on going it depends on if you see this CT angiography before then you will see that how much space is there how much it is curving and how much the flexibility is there how much you can loop extend the loop so that depends on that so but even if you under correction it if like this it is 5 mm up the dents up going up if you reduce this 4 mm even it is better so because if you don't have that much leverage in the spinal cord sometimes the cord also gets stretched if you put the दोनों चीजें खींचेंगे हाँ और यहाँ पे जो C2 है that you have to save C1 is coming here from this groove so the C1 will also be saved so you have to put the screw you always see the obliquity of the lateral mass line yes anterior tubercular to the tile like this only and here this only so you will stay medial to the vertebral artery and here also like this so one is अभी one is medial lateral angle yes
Always make this thing 3D in your brain, that where are you going? From the lower side, from the here, because the lateral mass is very big, good enough. There is no body of the C1. It is the only arch of the C1. So you go from here like this. You can do that with the drill, but then you're going small part, you can remove it. But this is a cadaver, every patient different. So if it is already there, otherwise the cortex is very important to hold the screw in place. So this is very important. So you can do the drill and you can put the screw here and here, then you can dissect it. अभी स्क्रू डालेंगे, अभी दिखाते हैं आपको स्क्रू डाल के इसमें. ड्रिल कर रहा हूँ ये वाला पार्ट नहीं ड्रिल क्यों कर रहे हो पहले? ये वाला पार्ट हल्का सा ये ताकि अपन को नीचे वाला पार्ट नहीं वहाँ जाना ही नहीं ना बेटा अपने को. यहाँ से डालेंगे ना तो यहाँ से हाँ नहीं यहाँ से नहीं, थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा, ये यहाँ से, क्योंकि दिस इज द बॉडी, दिस इज द लेटरल मास, सो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर. इसको पार्ट को हाँ थोड़ा कर लो ड्रिल. अरे देवेंद्र स्क्रू देना और स्पेसर मंगाना उसका. कौन सी में? देवेंद्र स्क्रू दे दे, C1 C2 स्क्रू दे दे और स्पेसर दे दे. सेक्शन नहीं है क्या यहाँ पे? डायरेक्शन अपन से देखेंगे यहाँ से मैं डायरेक्शन पूछ ये आपकी ये आपको लेटरल नहीं जाना है, बिकॉज द वर्टिब्रल बॉडी वाज हियर, सो वी हैव टू गो लाइक दिस. यहां से ऐसे जाना है आपको. मैं अभी डाल के दिखाता हूँ, स्क्रू लेकर एक मिनट रुको. सेल्फ टेपिंग है ना, सेल्फ टेपिंग है ना, ला दो. ये ड्रिल क्यों उधर है पहले? सेल्फ टेपिंग नहीं है क्या? एक मिनट, वहां पे दिख रहा है क्या? देखो. अरे यार ये भी और ही खराब हो गया है. तो इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है. एक मिनट पकड़ना इसका. ओपन नहीं ज़्यादा ठीक दिखेगा. नहीं पर उसमें अपन दिखा नहीं पाएंगे ना. बिल्कुल नहीं दिख रहा. जैसे दिस इज द C1 लेटरल मास हियर. इधर आ जाओ सब लोग, इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ. इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, वहां से दिखेगा नहीं कुछ भी. इधर आ जाओ. So just drill little bit of cortex only. You don't need to do the so at the direction and your action should be the towards the medial tuber anterior tubercular, and craniocaudal angle. like this. Your trajectory should be like this. So Parallel to the joint. हाँ. So just drill a little bit of cortex. Now you can, when you drill it, you can feel the bone, whether you are going into the bone or into the soft tissue. So if you feel that there is a good purchase, that it means it is, you are in the right place. And similarly, while putting the screws, I am drilling this superficially, and then we'll put the
try always to make the first entry point of the trajectory as you have decided before. So because once you made it, then the screw will always go into that direction, even if you have made the false passage. ये खराब है इसकी, या बोन खराब है, ये तेरी ड्रिल खराब है, ड्रिल नहीं कर पा रहा देवेंद्र. No, this is not the direction. This is not the direction. Where is the anterior tubercular? Anterior tubercle. So always go like this. So because the lateral body is like this, and this central tubercle is here, so your trajectory should be towards the lateral mass. If you go lateral, you will injure the vertebral artery 100%. ठीक है, पीछे से आ जाओ उधर से. ये इसका माइक्रोस्कोप फोकस नहीं हो रहा ठीक से. हो गया, ठीक है ना. अब ये सब लोग फिलर डाल के फील करो ये इसको, और फिर इसकी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करो क्योंकि छेद बन जाएगा वहीं पे, फिर वहीं जाएगा स्क्रू. एवरीबडी शुड कम एंड फील वन बाय वन. एक मिनट आप छोड़ दो, इनको आने दो, इनको फील करने दो. नाउ देन वी विल पुट द स्क्रू. अरे देवेंद्र स्क्रू देना है. स्क्रू कितना लंबा है और साइज. स्क्रू डालेंगे पहले, इनको सबको एक एक करके फिलर डाल के देखने दो. आपने देख लिया तो अगले को आने दो. सबको दिखाओ बेटा, आ जाओ एक एक करके, इधर से आते जाओ सब. देखो इधर आ जाओ. नहीं अभी आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू फील इट. यू हैव टू फील योर टच. इफ यू टच इट, C1 पे डाला अभी, C1 लेटरल मास में डाला अभी, चाहिए ना. वो नीचे C2 की. बताओ क्या क्वाड्रेंट है. सर 9 में डिवाइड करता है और मीडियल सुपर मीडियली क्वाड्रेंट. आ जाओ देखो, आप इधर से डाल के देखो. इसको छोड़ दो यार. क्या है इसमें कुछ सोना वोना है क्या. यस सर, इनको C1 पे स्क्रू डाल के दिखाया, ड्रिल करके दिखाया है लेटरल मास में. एंड देन विल डू दी C2 एंड देन डिस्ट्रैक्ट एंड पुट दिस स्पेसर. और सर इधर आ जाओ बेटा. देखा किसी ने और ने, तुमने फील किया, तुमने किया फील. यू फेल्ट इट. वी हैव डन दी ड्रिलिंग ऑफ दी लेटरल मास. इधर आ जाओ बेटा, फील करो. इधर से आओ, इधर से. इनको पहले बताओ. देखो ये देखो, इधर आओ, इधर आ जाओ. दिस इज दी, इधर आ जाओ, इधर आओ. वहां से दिखेगा नहीं ना कुछ भी. दिस इज दी C1, दिस इज दी C1 एंड दिस इज दी लेटरल मास. वी हैव पुट दी एंट्री मार्क हियर एंड यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दी. ये देखो फील करके देखो. साउंड, सी दी साउंड ऑफ द फील. This is little bit lateral. Still the drill you have made is little bit lateral. You have not gone to the that direction. You have to close your eyes. Close your eyes and then put the drill. Then it will go the right. Feel it. अगर आप आंख खोल के करोगे ना तो नहीं जाएगा. आंख बंद करके डालोगे आप ना कि आपको वहां जाना है, तो then you will be concentrated. देखा क्या आपने, देखा तूने इधर. यू फील दिस C1 lateral mass. We have drilled the lateral mass. परवीन एक मिनट, ये मैं इनको पढ़ा रहा हूं, देखो कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं. आ जा. परवीन बता रहा है थोड़ा. देखो मैंने कहा कुछ मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा. बताओ. देखो नहीं आप देखो ना, ये हमने क्या किया इसको बताओ बेटा. अरे वो माइक्रोस्कोप नहीं है, फोकस नहीं हो रहा बेटा. Now we'll put the screw.
सही है ना, गलत तो नहीं पढ़ा, मेरे को टोक देना गलत पढ़ा रहा हूँ तो ये नाउ वी विल पुट द स्क्रू। अभी आपकी जो डायरेक्शन थी ना, वो डायरेक्शन जो आपने ड्रिल किया है ना, वो आपने ड्रिल ये सीधा कर दिया, आप सीधा ड्रिल करोगे सीधा ओरोफेरिंक्स में जाओगे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज योर डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स लाइक दिस। हाँ, आपको मोर मीडियल, सुपीरियर मीडियल, इंटीरियर सुपीरियर मीडियल, दिस शुड बी द डायरेक्शन। बिल्कुल अर्जुन की बाण की तरह जाना चाहिए। अभी तो आप कर सकते हो ड्रिल, लेकिन पेशेंट में करोगे तो वो छेद बड़ा हो जाएगा, देन द स्क्रू विल नॉट बी होल्ड। ये यूं जाने दे, यूं जाने दो, ये इसमें स्टिफ है ना, शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है। तुमने एक्सरेज में देखे होंगे, जो लोग बड़े बड़े लोग करते हैं उनके एक्सरे देखे होंगे, ऐसे टेढ़ा आता है ना स्क्रू। You make the 3D picture in your brain and then you do it. फिर तेरा हाथ टेढ़ा रहता है अभी भी। मैं हमेशा सबको डांट डांट के ये बड़ी मुश्किल से सिखाता हूँ कि तुम्हारी डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, और until you feel the bone you have to stay there. Once you don't feel the bone, it means you have gone through and through, so that you don't want. So now you have to put the screw. What is the size of the screw? 26 mm. This is 24 mm. What is the thickness of the screw? 2.6 and 2.6. This is 4 mm. This is 4 mm. Thickness. Diameter of the screw. Or Yes. So now you have made it like this. This is self-tapping screw. Once you have the entry point, just keep on slowly. Don't put pressure. It will automatically enter into the bone and it will keep on entering into the bone. Just keep on screwing it. You have to see the direction. Just आप अपना दिमाग आंख बंद करके भी देखोगे ना, ऐसे आंख बंद करके कि कहाँ जा रहा है आपका स्क्रू, you will feel it where it is going. यहाँ पे थोड़ा कैडेवर का शोल्डर स्टिफ है ना, ये आ रहा है बीच में, अदरवाइज यू कैन मेक द पोजीशन लाइक दिस। ये देखो, अब कर को देखो, ये थोड़ा सा करके देखना, बाकी सब लोग डाल के देखो स्क्रू बोन में जा रहा है क्या, वन बाय वन। जस्ट पुट 1 or 2 threads and then give chance to others, everybody. हाँ जी, सब लोग एक एक करके डालो, तो एक एक थ्रेड डालो, सब सही जा रहा है क्या देखो। ये कागज, ये अरे राम रे, हाँ टैप कर दिया ना, टैप कर दिया, आप देखो तो कैसे जाएगा। तो फिर मैं भी चलूंगा, मैं थोड़ी देर में, नहीं मैं चलता हूँ फिर, 1-2-10 मिनट का काम हो रहा है। सब लोग डाल के देखो सही जा रहा है क्या देखो। ऐसे मत करो आप, ऐसे डायरेक्शन बीच में चेंज कर दोगे, देन द थिंग्स विल बी, टारगेट विल बी डिफरेंट। यू हैव टू डू सर्जिकल स्ट्राइक। आ जाओ, आप भी डाल के देखो, थ्रेड करके देखो। यू विल व्हेन यू पुट दिस स्क्रू, अमित इधर आ जा, यहाँ देख, ये C1 में स्क्रू डाल रहे हैं, एक बार डाल के देख तू, देख, इफ यू विल सी, यू विल फील द परचेज ऑफ द बोन। इफ इट इज टाइट, इट मीन्स इट इज बोन इज परचेजिंग द स्क्रू वेरी वेल एंड इट इज टेकिंग अप द स्क्रू, सो इट विल होल्ड डेफिनेटली। जैसे अपन चूने की दीवार में कील ठोकेंगे और एक अपन सीमेंट की दीवार में कील ठोकेंगे, तो देयर विल बी डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस। Resistance and then later on hold also. The hold is more important. If there is no resistance, the bond will not catch. If the bond will not catch, then the resistance, then the screw will be loosened over a period of time.
बॉस अब बताओ जरा सही कर रहा हूँ कि नहीं? नहीं, मैं पढ़ा कर रहा हूँ, मेरे को तो खुद ही पढ़ रहा हूँ बस। मैं इस बहाने पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ खुद इस बहाने यार। क्या पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो स्क्रू डालना सिखाया, C1 पे डालना बच्चे, ये मेरे को सिखा रहे हैं बच्चे सब। बच्चे मेरी गलतियां पकड़ रहे हैं, मेरे सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार। आ गया बेटा, सॉफ्ट टिश्यू आ गया। तो इट मींस दिस स्क्रू इज लॉन्गर, screw is longer, you have entered into the oropharynx now, so take the smaller one। छोटा स्क्रू दे बेटा, देवेंद्र कहाँ गया? बट योर डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना देखा अमित? क्या डायरेक्शन? नहीं, ये सही नहीं है डायरेक्शन तुम्हारी। डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए पहले सुनो, 3D दिमाग में सोचो डायरेक्शन का, ये सही नहीं है अमित, क्या नाम मनीष, ये फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस यहाँ हो रहा है तो इसकी फोकल लेंथ कम है। ये देखो, आप पहले आप अपने दिमाग में सोचो, देखो क्या है, आप एनाटॉमी सोचो, वो कहाँ गया? बोन, बोन का वो जो था ना पीस, कहाँ गया वो? स्केलेटन, स्केलेटन था ना पूरा, अभी मैं यहाँ लेके आया था पूरा। जो ये आपकी बॉडी है, दिस इज द एंटीरियर आर्च ऑफ द C1, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज द लेटरल मास, ठीक है ना? अब नाउ यू मस्ट नो द C1-C2 जॉइंट, हाउ इट इज द C1-C2 जॉइंट इज, C1-C2 जॉइंट इज जस्ट ऑब्लिक लाइक दिस, इट्स नॉट, नहीं नहीं ये नहीं बेटा, लंबी वाली स्पाइन, स्पाइन था पूरा, स्पाइन कहाँ गया वो? अरे स्केलेटन था पूरा स्पाइन का। तो C1-C2 जॉइंट इज ऑब्लिक, आप यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये बोन, ये स्क्रू निकाल के फिर स्क्रू दोबारा डालेंगे ना अपन अभी। ये देखो, आगे देखो अमित, आगे घुस, ये देखो, दिस इज द C1-C2 जॉइंट, this is the C1-C2 joint, this is not the straight one, this facet joint is the like this, like oblique, so you have to be careful while putting this screw or putting this spacer into this। so ये इसमें ये नहीं, वो थी बोन यार, ओरिजिनल बोन ये नहीं, ये तो 100 बोन है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉट फॉर द न्यूरोसर्जन्स। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द C1, this is C2 lateral lamina, and this is the lateral mass where we have entered it, and this is the lateral mass here. There was the C2 root going from here, we have cut it for the we should not cut in the patient, but now for, and this is the C1-C2 disc space। कहाँ गया वो बोन वाला बेड़ा? लेके आओ ना, एक मिनट ले आओ ना। तो ये C1-C2 जॉइंट है, ये इसमें क्या है, जो लेटरल मास है ना, द लेटरल मास इज हियर लाइक दिस एंड हियर लाइक दिस, राइट, एंड द लेटरल मास इज बाइकॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ ऐसे है और नीचे की तरफ ऐसे है। लेटरल मास ऊपर की तरफ ऐसे की तरफ है, रदर बीइंग ओब्लिक एंड स्ट्रेट, रदर इट इज लाइक ए प्लेट, जैसे चाय की प्लेट होती है, कप प्लेट होता है, इट्स लाइक ए प्लेट, एंड हियर बिलो इज लाइक दिस, स्ट्रेट एंड ओब्लिक। सो द inferior articular facet of the C1 is oblique and the superior articular facet of the C2 is also oblique. So this is a basically oblique joint. So you see once the oblique joint here, then you stay medial to this thing and lateral to the body or the lateral mass. Here is the cord, so you are safe here, and because the lateral mass, lateral to the lateral mass is a vertebral artery. See, वो अभी मिल जाता, मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। वो लेया किसके पास है यार? एक मिनट लेया ना, कौन है? अरे एक मिनट देना यार, उगन एक मिनट देना। ये देखो, सी दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी गोइंग हियर, हियर है ना, ये यहां से निकल रही है ना, ये ठीक है, ये यहां जा रही है ना, if you see it's like this here, okay, और ये जो अपन कहां से देख रहे हैं, अपन यहां से देख रहे हैं, है ना, so the lateral mass is here, so this superior articular facet is like this and inferior articular facet is like this. Am I wrong? So we make a slight cut here or drill the cortex of the lateral arch of the C1. We have to stay medial to the lateral border of the C1 and lateral to the medial border of the C1 body or the lateral mass. Then make a drill here and then make a 3D picture in your brain that you have to go like this to reach the lateral mass.
if you go like this state, either you will injure the vertebral artery or you will enter into the oropharynx. So you have to be like this. Make a 3D picture in your brain and go there like this. And then similarly from here. No, we have to put the screw from here. Medial border of the lamina and lateral border of the body. क्या पेडिकल बहुत छोटा सा होता है, पेडिकल होता ही नहीं है इनमें, ऑलमोस्ट पेडिकल इज रूडिमेंटरी. इफ यू गो डाउन देन यू विल हैव, बट हियर इज द पार्स आर्टिकुलरिस, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस. वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट, देन देयर विल बी द डिस्क स्पेस. And C1 C2 disc is also not very prominent. It is, then you put the screw above in C1 and C2 both and then distract it. So your joint space is distracted, and then you put the spacer here and then put the fix it. ठीक है ना, ये इसके साथ में सीखना जरूरी है. कौन डाल रहा था स्क्रू? तुम डाल रहे थे? डालो, तुम डाल रहे थे, लो डालो. ये स्क्रू अब सुपीरियर और लेटरल इसको छोड़ दे, ड्रिल को मत करो. अब तुम दिमाग में अपने 3D पिक्चर बना के डालो, कैसे डालोगे? नहीं, पहले इसको गोली चलाने से पहले टारगेट देखो कहां जाना है तुम्हें. तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री है, देन योर टारगेट इज वन. यू नो द ट्रेजेक्ट्री, हाउ यू आर गोइंग, एंड योर टारगेट इज, व्हाट इज योर टारगेट? Yes, anterior tubercular. So the lateral mass is like this. Okay. So the lateral mass, to go from here like this, you have to go oblique, superior, oblique, and medial. हाँ जी सर. Yes. Come. देखो वो डाल रहे हैं, स्क्रू डाल रहे हैं. तुम लोगों ने स्क्रू डालना शुरू किया क्या? है क्या वर्टिकल आर्टरी दिखी? तुम तो बहुत पीछे भी पूरा डिसेक्शन हो ही नहीं था. तुम आओ इधर दिखाता हूं मैं ज्वाइंट. हमने पूरा ज्वाइंट खोल दिया है. इनको भी दिखाओ इधर ज्वाइंट एक बार. अमित कहां गया? ये देखो, वी आर पुटिंग द स्क्रू नाउ, है ना? ये देखो एक बार. See, this is the oblique joint here. This is the C1 C2 joint, oblique. You can see ये बाल किसका गिर गया? मेरा ही गिरा होगा. ये देखो, this is the C2 lateral body, this is C1 lateral mass, and here we have made the drill. Yeah, this is our drill, and this is the oblique C1 C2 joint. You can see now, and the cord is here. So we are going like this here, and कौन डाल रहा था स्क्रू? डाल के बताओ कैसे डाल रहे थे? Which direction? अरे पंकज बस, अरे पढ़ा दो यार कुछ. हम्म 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 नहीं, ये जो है आपका, इसको आपको थोड़ा सा ड्रिल कर सकते हो आप, इसको हल्का सा, जस्ट टू, हाँ सपाट भी नहीं करना क्योंकि फिर देन स्क्रू लेंथ विल बी रिक्वायर्ड लेस, एंड ये फिर ग्रिप नहीं करेगा पूरा. सो यू हैव टू डू, हाँ नहीं, उसको कोटेक्स को काट सकते हो, थोड़ा सा काटोगे तो एंट्री पॉइंट मिल जाएगा आपको. सो डोंट मेक थिंग्स सो फास्ट कि आपको एंट्री करके ऐसे घुसना है, जल्दी से जल्दी नहीं करनी है, आपको आराम से सोचना है. फिर आपकी डायरेक्शन, पेशेंट लाइक ऐसे है तो आपकी डायरेक्शन जो है इज टुवर्ड्स द एंटीरियर ट्यूबरकल. सो व्हेन योर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द एंटीरियर ट्यूबरकल, यू हैव टू गो और ड्रिल लाइक स्ट्रेट हियर लाइक दिस. वो नहीं है क्या डिसेक्टर? सो गो सुपीरियरली, ऑब्लिक एंड एंटीरियरली, एंटीरो ऑब्लिक सुपीरियर. जो आपकी पोजीशन है ना ऑपरेट करने वाली, हाँ नहीं, वो सिखा दिया वहां पे, डाल के दिखा दिया स्क्रू इनको सबको. ये इसीलिए बनाई है. तो दिस इज, यू हैव टू ड्रिल लिटिल बिट ऑफ कोटेक्स हियर.
and then this is the lateral mass, right? You stay lateral to the middle border of this lateral mass, and medial to the lateral border of the middle mass. So you feel this, and then feel the joint here, pars interarticularis, and then joint. First of all, so from, if you go from up to below, like, then you keep on identifying the anatomy properly, and then drill it a little bit here, and then the direction of your drill should be oblique anterior superiorly towards the anterior tubercle, because here is the lateral mass, which is the maximum part or the maximum mass of the bone where the screw is going to hold, right? So when you put the screw here, like, और दूसरा जो है, then the C2 screw is also to be put here in the lateral mass of this thing, lateral body of this, and then distract, put the rod, distract it, then the space, joint space will be opened. ये इसके आपको क्वाड्रेंट पता ना, C2 के लेटरल मास के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? So the most important point where you consider this is the obliquity of the C1 C2 joint. This is not the straight one. This is like this. So the body of the C2 lateral mass or the C2 lateral mass is a bigger one. It goes above also, up to the facet joint also. So you can enter from here, because here the C2 C3 joint will come, facet will come. So you have to enter it a little bit higher from here. So if you divide it into the four quadrant, This is the isthmus of the C2. C2, Okay. So because there is no pedicle in the C2. the pedicle is small and it is here. So what you are doing is you are going through the isthmus, and basically you should dissect this tissue along the medial border of the parts of the C2. Okay, and then you will reach the joint. Ideally, what we do, or many surgeons, what they do is first they remove the posterior arch of the C1. Okay, so as soon as you reach here and you reach the joint, you are able to identify the lateral mass of the C1. Okay, now what you have to do is you have to drill this part of the remnant part of the posterior arch of C1. When you drill this point of entry for the C1 lateral mass will be well visible to you. Ideally, You should do it under the microscope. but ideally you should not remove this posterior arch. There is no point in removing. Why to destroy the bone? No, it can Try be- to it try can to reduce the destruction of the anatomy as much as possible. So, but helps, but this can be used for bone grafts here, no, why to remove it and then put the bone graft? because when we It is are already there. when we manipulate, it helps to decompress the cord. No, there is a, if you There are distract, less if you chances- distract and fix it. Those who are starting to do it, you see what happens is there are less chances that you are going to cause deficit to the patient. Once you have removed the posterior C1 arch, you are going to help the patient. At least you have done the decompression correctly. That is the first point. Then you have to fix it and fuse it. So as a beginner, what I would suggest is first drill off the posterior arch. Make space. And then everything is in front of you. But then the cord open into your place. While fiddling with the instrument, you can injure the cord. You can enter the cord It is here. it is as much as possible you stay. नहीं मैं तो मतलब there is a difference of opinion, but this thing that even if you are beginner, try to do it with the, if you cannot do, then do the laminectomy as Dr. Manish has said. Because it helps, it helps to, what you do is the landmarks are right in front of you then. Otherwise, you might see the landmark. Here you see, you follow the medial border of the bar, you reach the joint, and then you drill it. Even that way you can do it. Or remove the posterior arch. इसमें स्क्रू डाल दिया हमने C1 में, हाँ अब C2 में डालेंगे. चले C2 के लिए स्क्रू दे दो, बस एक C2 में स्क्रू डाल के फिर देखते चलते हैं. मेरे को भी सीखना है C2 में भी डाल दिया क्या? C1 का कहाँ है? C2 में कौन सा स्क्रू डाला है? ये C2 का स्क्रू है. पार्ट्स डाला है. और C1 का कहाँ है? C1 वाला C2 में डाल दिया है. नहीं तो C1 में भी तो डालना है ना.
वो कहाँ गया ऑडियो विजुअल वाला? अरे बेटा ये लेना।
हो गया माइक चालू? हाँ. Number one, that all this fixation, screw fixation should be done under microscope. Okay? Don't do without microscope. That is number one. Second thing is C1, C2 fixation. C1, C2 fixation cannot be done without microscope. समझ गए? Don't try without microscope. Now here, see, इसको निकाल ही दे यार. सर आप कॉलर में बना दो, सर को कॉलर में बना दो, कॉलर में डाल दो, उसकी आवाज़ कम करा देता हूँ थोड़ी सी. यहाँ डाल दो, हाँ बस ये that's it. See, when we do now this C1, C2 fixation, our center point is the C2 spinous process. समझ गया ना? C2 spinous process के 4 centimeter above, 4 centimeter below is the incision, skin incision. Take solid incision, identify the C2 spinous process. You know, I was talking yesterday that I don't use any coagulation, right? But I have to use some coagulation here in this area. यहाँ से some bleeding happens from the arterial bleeding or venous bleeding in this area. बस एक ये area और बाकी कहीं bleeding नहीं. Okay? Then identify the C2 spinous process. Sharp knife से काटो इसको sharp and थोड़ा side से काटो. Okay? Then put your mastoid retractor and then subperiosteal dissection. Subperiosteal dissection से expose the lamina and go up till here, lateral. Okay? And then the most important issue is to identify the pedicle. Identify the pedicle and go up. See, this is the lamina. ये स्क्रू ऑलरेडी डाल दिया भाई साहब तुमने. ये स्क्रू का डायरेक्शन थोड़ा गलत है. ये जो डाला है ना स्क्रू, दिस इज नॉट सच ए ग्रेट डायरेक्शन. ये पेडिकल को आइडेंटिफाई करो और सर राइट साइड इज बेयर. सी ये तुमने आइडेंटिफाई किया लैमिना, ये आइडेंटिफाई किया लैटरल एस्पेक्ट ऑफ लैमिना. पेडिकल को आइडेंटिफाई करो. ओके? नाउ पेडिकल को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Lateral to the pedicle is vertebral artery, okay, and medial to the pedicle is the spinal cord, and medial to the pedicle यहाँ पे extradural venous bleeding होती है इधर, okay, and इधर से lateral gutter में. तो तुम ये pedicle को identify करो और सब बाकी इधर उधर ज़्यादा expose ही नहीं करो, and identify the pedicle and go up, okay, and within 1 minute you can get into the articulation. You see here is the articulation. देखा ना? ये articulation. Now what I do is, you know, this C2 ganglion resection. I think this was the turning point in the history of C1, C2 lateral fixation, which we described in 1988. कि तुम ganglion काटोगे तो joint पे पहुंचोगे. This was a very big change, big concept. किसी normal structure को काटना is not such a, उसको बोलना कि काट दो, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है. तो ये जो था हमारे ख्याल से वो turning point था. क्योंकि जो C2 गैंग्लियन रहता है इट इज़ राइट ऑन द आर्टिकुलेशन. तुम अगर आर्टिकुलेशन से गैंग्लियन हटा दो तो देन यू कैन हैव द आर्टिकुलेशन राइट देयर. तो व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर इन आवर माय ओन करियर दैट वी वर कटिंग द गैंग्लियन एंड देन एक्सपोजिंग. बट एज वी प्रोग्रेस्ड, गैंग्लियन कटिंग इज वेरी रेयर except in very complex cases and very dangerous and difficult basilar or torticollis or otherwise ganglion cutting is not necessary. उसमें तुमको क्या करना है? Hello. You come along the pedicle and go into the joint. Okay? Joint में जाके you put a small osteotome and remove the articular cartilage. And when you remove the cartilage, तुमको वहाँ पे C1 facet you are seeing the C1 facet. If you can expose more and posterior border of the C1 facet, that is good. Otherwise, जो दिख रहा है facet वहीं से screw अंदर hole डालो पहले. Quickly, there is no need to do unnecessary foolishness. You understand? ये डाल दिया वो डाल दिया, अरे उसमें सीधा hole डालो C1 facet में. Beyond C1 facet there is nothing. Above the arch of atlas there is vertebral artery. Very rarely the course of vertebral artery is under the arch. Very rarely. But if you are subperiosteal, you put the ganglion up. So nowadays I am not cutting the ganglion. Ganglion को ऊपर उठाया, identify the facet, make a hole, put bone in the joints, put one screw,
take this beautiful plate and then see this technique of plate we had described them. Some people came with polyaxial screws and all those things, which has become much more popular. But ये जो है ना इसमें solidity है. When you put strong facet screws डालते हो ना तुम, and over the plate it is a very solid, and also when you put bone graft in the joint, it becomes a very solid fusion construct. Second thing is this spacer की बात है. Spacer. Now listen about spacer. Spacer I describe first spacers. C1, C2 spacer भी I had described, and subaxial spacers भी मेरी description है. And I used to do. Yesterday I was saying कि ये मैं करता था. अभी मैं सोच रहा हूँ बेवकूफ़ी है वो सब करना. It's not nonsense. I describe and I am saying it is not necessary. समझ गए? I describe occipital screws. Now I am saying occipital fixation itself is not necessary. समझ गए? तो ये inside spacer जो डालना है in the articulation is completely not necessary. Even subaxial spacers मैं डालता था for degenerative spine, and nowadays I am saying it is not necessary. Okay? Although it has become quite popular, subaxial spacers, and मेरा patented है, I can make big money on that, but I am now saying it is not necessary. समझ में आया? Basically what we have to do is, ये जो है ना area, ये अभी dissect नहीं हो रहा बराबर इधर. This area is not dissected, and because this is a cadaver, you cannot expose the C1 properly. See, ये तुम्हारा joint में घुस गया ना एक बार, यहाँ पे venous bleeding होएगा. Identify the C1 facet. C1 facet को देखो अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा. And don't try to see too much, because there will be venous bleeding and this and that. वहाँ पे sharp cut लो on the bone and identify a spot for C1 screw, C1 facetal screw. That is not difficult in a regular case, but when there is assimilation of atlas, when there is basilar invagination, when there is Chiari malformation, when there is syringomyelia में क्या होता है? Cord is very flabby, और extradural venous bleeding can be immense. So तुम्हारे को उसमें घबरा जाओगे. If you are not very familiar with this, ना venous bleeding से घबरा के ही भाग जाओगे, समझा? Then you will say decompression अच्छा है, decompression अच्छा है. समझ में आया? जैसे वो अंगूर खाने चला हो, अपना लोमड़ी, अंगूर के बहुत ट्राई किया, तो बोले अंगूर खट्टे हैं, बोले भाग लिए. समझ में आया? तो इसलिए भागने से पहले अच्छे से थोड़ा इसको फैमिलियराइज करो. ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए. बट यू नो व्हाट, द टिश्यूज आर टू टफ हियर, एंड यू कैन हैव अ फीलिंग कि ये तो साला बड़ा डिफिकल्ट सा मामला है. इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज सीन हियर. बेसिकली यू डू सब पेरियोस्टियल डिसेक्शन, सब पेरियो, तो तुम्हारे को कोई कोगुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं. अगर तुम वो मसल में काटोगे और ये काटोगे तो देन यू विल नीड सम कोगुलेशन. देन फॉलो द पेडिकल. याद रखना, कभी कभी ये जो रहता है ना पेडिकल, यहाँ से जाना है, कभी कभी लगता है कि ये पेडिकल है, यहाँ वर्टिबल आर्टरी है, तो समटाइम्स यू कैन सी कि दिस इज द पेडिकल, एंड यू कैन क्रिएट अ मेजर डिजास्टर. समझे? तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द पेडिकल एंड गो अलॉन्ग द पेडिकल इनटू द जॉइंट. देन ऑस्टियोटोम डाल के घुमाओ उसको. देन C1 में एक स्क्रू डालो, बोन ग्राफ्ट डालो जॉइंट के अंदर, देन द अदर स्क्रू इन द C2. अभी C2 के बारे में, C2 जो है ना, दिस इज द लार्ज पेडिकल ऑफ द C2. ये है पेडिकल. ओके, तो ये बहुत ही लैटरल डाला हुआ है. ये जो दिस होल इज वेरी लैटरल. ये इतना लैटरल है ये जो होल है कि आई विल से 80% ऑफ चांस दिस कैन हिट द वर्टिबल आर्टरी. दिस होल विच इज बी मेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपना लर्निंग के लिए, नॉट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग किसने बनाया, वो फालतूगिरी नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज दिस होल इज टू लैटरल एंड टू डेंजरस. 80% चांस है इसके अंदर कि तुम यू कैन हिट द वर्टिबल आर्टरी इस होल में. सो यू विल से कि दिस होल में है, तो कौन सा होल? दैट इज योर क्वेश्चन. सी व्हेन यू आर पुटिंग द होल ना, ये जो पेडिकल है ना, ये पेडिकल, you identify the medial side of the pedicle here, and your hole should be up and medial. ये just give me the, कुछ है होल बनाने का? ड्रिल है सर? ड्रिल बे ड्रिल. फुट स्विच है?
सी मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई ड्रिल दिस एरिया, यू सॉ मी यस्टरडे. ये आई ड्रिल दिस, जिससे कि मेरी प्लेट जो है ना फ्लैट उसके ऊपर आ जाती है, अदरवाइज उसको टर्न करना इज नॉट पॉसिबल. एंड इफ यू रियलाइज, सी अभी मैं यहाँ आई विल मेक माई होल हियर, यू अंडरस्टैंड, हियर. एंड ऑल्सो समटाइम्स इवन दिस होल कैन बी डेंजरस अगर वर्टिबल आर्टरी वेरी हाई. तो थोड़ा मैं ड्रिल करता हूँ. इफ़ यू हैव रेड माई पेपर, आई ड्रिल अ लिटिल बिट एंड पुश द वर्टिबल आर्टरी इन सम रेयर केसेस. हैव यू रेड माई पेपर? इन न्यूरोसर्जरी में आया था वो, न्यूरोसर्जिकल फोकस में. सो ड्रिल एंड मोबिलाइज, सो यू कैन मोबिलाइज द इंट्रा vertebral, intra osseous segment of the vertebral artery. You can push the vertebral artery, but that is rarely necessary. But if it is necessary, you can do it. It is not such a great. उसके लिए तुमको diamond burr चाहिए. You cannot do with this burr. And also, so if there is a pedicle upper, ये समझ लो ये की है इस ऑपरेशन में. और याद रखना, if you सबसे नंबर 1 you have to be sure कि you have to learn this technique. क्योंकि as I was talking yesterday, you see how many are the indications of C1 C2 fixation, and they are rapidly expanding the indication. तो and I have also told कि अगर तुमने अच्छा C1 C2 fixation किया, you can give new life to the patient. So you have to learn. You are young boys. Why the hell you will not learn? उसमें major trick is that your hole in the C2 is quite medial and superior. देखो medial and superior. ये बहुत ही बड़ा है ये. सर वो ड्रिल ले लीजिए, वो हैंड ड्रिल ले लीजिए. यहाँ पे medial and superior, ये देख रहे हो ना कहाँ जा रहा है? Yes, sir. Vertebral artery जो रहती है, it comes from lateral, it goes into the pedicle and sometimes on the medial on the lateral surface of the facet. समझा? See, this is the direction, okay? Yes. ये थोड़ा इसके अंदर ना because of the previous hole, यहाँ पे ये है direction up. You see this? Up and medial. And in the through the pedicle it goes in the facet. समझे ना? So don't make it lateral, don't make it inferior. ये जो पहला वाला होल था ना, in my estimation 80% chance of hitting the vertebral artery. Now your question will be, suppose you are doing this and there is a sudden gush of blood, then what? क्या करोगे? हाँ? Put your screw and tighten it. और भूल जाओ उसको. 95% चांस है कि कुछ नहीं होगा. 95%. एकदम से घबरा मत जाओ कि अरे ये क्या हो गया. Now the problem is vertebral artery injury can occur here, it can occur here, or it can occur here lateral में. And sometimes if you have dissection in your, when there is assimilation of atlas or basilar invagination, it can occur over the arch of atlas. It is more dangerous if it is occurring here and occurring lateral, but if it is occurring here, उसको immediately screw डालो और काम खत्म करो. पहले तो अपना होल कंप्लीट करो. If it is bleeding ना, don't hesitate to complete the hole, because there is no way you can repair that artery, and no other way to control that bleeding. समझ में आया ना? तुम उसमें बोन वैक्स डालते बैठो और ये सब वो नॉनसेंस है वो, क्योंकि then you lose your chance of fixation also. Neither you have broken the vertebral artery and also you have not fixed. So at least injury हो गई है तो fix तो करो कम से कम. समझ में आया ना? So I have actually injured the vertebral artery on one side, and I have injured the vertebral artery even on both the sides in some occasion, and there has been no problem. But I have had problems also. ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी भी problem नहीं हुआ. I have had deaths following surgery. So basically you have to avoid vertebral artery, and that is the key of this operation. समझ में आया ना? I think this is the key कि तुम
उसको अच्छे से ड्रिल करो, मीडियल पार्ट ऑफ पेडिकल को अंडर विजन उसको फील करो पेडिकल को, और अलोंग द पेडिकल उसको फैसेट पे डालो मीडियल. और अगर वर्टिबल आर्टरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू आर डूइंग प्री ऑपरेटिव स्टडी ऑफ द इमेजेस, उसको कोरोनल इमेज देखो. कोरोनल इमेज में वर्टिबल आर्टरी का हाई राइडिंग ग्रुप दिखेगा, उससे तुमको यू विल अंडरस्टैंड वेयर इज द वर्टिबल आर्टरी. So most important image in preoperative study is the coronal image to see the vertebral artery and medial. It is a beautiful technique. You see, it can be done quickly, it can be done solidly, it can be done effectively and remarkable. जो results है ना इसके, you instantly give new life. So तुम्हारे को ये सीखना ही जरूरी है भाई साहब. तुम बोलो नहीं ये नहीं वो नहीं, वो नॉनसेंस बात है. तुम यहाँ आए हो to learn, so you have to learn and do. Okay, अपने अपनी जगह पे जाओ और स्टार्ट करो. पर स्टार्ट करने के लिए पहले अच्छा नॉर्मल केस, डोंट स्टार्ट विद बैजिलर इन्वेजिनेशन, डोंट स्टार्ट विद असिमुलेशन ऑफ एटलस, डोंट स्टार्ट विद स्मॉल क्लाइवस. जिसमें छोटा क्लाइवस हो डोंट डू इट वेयर द क्लाइवस इज नॉर्मल लेंथ. समझे ना, कभी कभी कैरी के साथ छोटा क्लाइवस होता है तो उसमें यू कैन गेट ट्रबल्ड. डोंट डू विद स्मॉल क्लाइवस, डू व्हेन द क्लाइवस इज लार्ज. डोंट डू विद severe basilar. Don't do start your case with syringomyelia क्योंकि extensive venous bleeding can be a problem. But you have to do it. So my best wishes to you. Enjoy and do it. Thank you so much. Subaxial, another revolution. Another. ये जो है ना पंकज भाई साहब, ये कैसे होता है यार? ये नहीं. सब एक्चुअल. नाउ यू सी, अभी सुनो. मोस्ट ऑफ अस आर ऑल ऑफ अस आर न्यूरोसर्जन्स. Our ideas about screws, our ideas about facets, our ideas about fixation is not very strong in neurosurgery. But it should be strong. It is easy, it is simple, it is not such a complex issue. When we are trying to do cervical fixation, what are the options with us? एक तो ऑप्शन है एंटीरियर फिक्सेशन, लाइक तुमने डिस्क निकाली और वहाँ पे केज लगाया और उसमें स्क्रू लगाया. वन इज द वर्टिबल बॉडीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वर्टिबल बॉडीज आर वेरी उसमें वेरी फ्लिमजी. एंड अगर तुम मोर देन वन लेवल फिक्सेशन करोगे ना, देन इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग सर्जरी. अगर तुम 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल फिक्सेशन किया ना तो 100% कॉम्प्लिकेशन रेट है. इवन ट्रेनालिस जो ही इज अ वेरी सीनियर सर्वाइकल स्पाइन सर्जन, उसने बोला है 3 लेवल से ऊपर तुम अगर एंटीरियर सर्जरी किए तो 80% कॉम्प्लिकेशन. उसका रिसेंट आर्टिकल इन जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी. So anterior fixation is possible, but it is one is it is flimsy. Second is it is expensive. These cages and all expensive का बात ही नहीं करो. Third thing is it is dangerous. You can have carotid injury, esophageal injury, tracheal aorts, all kinds of injury and drilling करो. और corpectomy is a redundant nonsense operation. याद रखना. सो अगर फिक्सेशन करना है, अगर एंटीरियर नहीं करना है तो क्या करें? तो पोस्टीरियर इज अ गुड फिक्सेशन. दिस फैसेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस ट्रांस आर्टिकुलर फिक्सेशन विच कैमिले आई हैव नॉट डिस्क्राइब, कैमिले हैज डिस्क्राइब. सच अ सिंपल, सच अ फैंटास्टिक, सच अ ग्रेट एंड सॉलिड फिक्सेशन कि उसके जैसा फिक्सेशन टेक्निक देयर इज नो अदर फिक्सेशन. एंड इट इज सो सिंपल दैट ऑल ऑफ अस कैन डू इन सिंपल, वेरी क्विक. Sometimes my assistants expose and I do 5 level fixation in 10 minutes. घुस करके घुमा दिए. समझ में आया? It is as simple as that. उसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है. Now you will say what is the technique, okay? Now the technique is इसमें ना the technique is first identify the lamina. हाँ बोन मॉडल, हाँ बोन मॉडल दो. फर्स्ट आइडेंटिफाई द lamina. ओके, स्पाइनस प्रोसेस को कट किया.
फिर सब पेरियोस्टल डिसेक्शन किया, आइडेंटिफाई द लैमिना, गो लैटरल, आइडेंटिफाई द जॉइंट, वेरी क्विक। ये 2 मिनट में करना चाहिए। अगर तुम इसको 2 घंटे लगा रहे हो ना तो अपने आप को मिरर पे जाके थप्पड़ मारो सालो, 2 घंटे इसके समझ में आया? See, this is the spinous process. Cut over the spinous process sharply, then cut lateral sharply, and then use periosteal retractor and expose the lamina and then expose this joint. Okay, quick, 2 minutes or 5 minutes or half an hour. एक बार तुमने joint expose you have done, इसको जरा move करोगे ना, you will identify unstable from stable. You see, I have done so many. So I can identify, इसको ऐसे हिलाने से तुम समझ जाओगे कि ये इज स्टेबल और अनस्टेबल। जैसे आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिजेनरेटिव स्पाइन yesterday, there may not be any compression at C1 C2, but C2 spinous process को ऐसे हिल, if I move I know exactly, अरे पूरा अनस्टेबल पड़ा हुआ है। कैरी malformation में तुम अभी करने गए ना कभी, सपोज इन योर डिपार्टमेंट यू आर डूइंग foramen magnum decompression, you may not be even allowed to do because you are junior or you may not be doing। उस टाइम तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, C2 स्पाइनस प्रोसेस को ऐसे ऐसे हिला के देखो, इतना अनस्टेबल मिलेगा तुम पागल हो जाओगे। यू ट्राई नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग फोरामेन मैग्नम डिकम्प्रेशन, व्हिच यू शुड नेवर डू, यू जस्ट एक्सपोज द C2 स्पाइनस एंड जस्ट मूव लाइक दैट, हाईली अनस्टेबल, ओके। In degenerative spine also you can just move this and identify. So I was saying yesterday, the most important issue in degenerative spine is to identify unstable segments. One is by radiology, जहाँ osteophytes पड़े हुए हैं, जहाँ ligamentum flavum hypertrophy है, जहाँ disc space reduction है, वो unstable है। उसके adjacent भी unstable हो सकता है। So उसको पहले देखो और उसके adjacent को just spinous process को हिला के देखो। If you have more experience, you can find out कि ये unstable है। फिर उसके ऊपर वाले को हिला के देखो, you will find out कि वो unstable है। So it is one radiology, one clinical and one intraoperative। मेरा बैग लाया ना, तुम समझ में? Another thing is when we do multi-segmental degeneration, अभी एक beautiful चीज तुमको बताता हूँ। See, when a person becomes old, उसके मसल्स पीछे के वीक हो जाते हैं। अभी मसल्स वीक होंगे, वो एक सेगमेंट में तो नहीं वीक होंगे, पूरे के पूरे मसल वीक हो जाएंगे, बराबर है? सो इन ओल्डर पीपल इट इज सिंगल सेगमेंट कभी होता नहीं है। इफ अ ओल्डर पर्सन कम्स विद spastic problems and limb weakness, he has multi-segmental issues. And these multi-segment, like lumbar canal stenosis in the elderly is not one segment, it is 3 segment or 4 segment. Lumbar disc is one segment in younger people where he injures, कहीं injury हो गई, खींच लिया, वजन खींच लिया, मुंडी हिल गई, गिर गए, it is one segment, but in elderly it is more than one segment. If there is a multi-segmental degenerative spine and the person has myelopathy, भाई साहब तुम लिख लेना इस सेगमेंट, इस स्टेटमेंट को मेरा, when a person comes with myelopathy and he has stiffness in the legs and radiologically तुमको सिर्फ 5-6 पे और C6 पे दिख रहा है, and if you do from anterior C5 C6, this patient is most likely to worsen after operation. उस टाइम पे क्या है, you do this fixation and in this multi-segmental with severe myelopathy, C1 C2 instability is very frequently associated. Now C1 C2 इसमें instability है ना, तो you don't have to do C1 C2 fixation, you do C2-3 fixation. If you do C2-3 fixation, now देखो carefully, you see, if you do C2-3 fixation, okay, now your odontoid is fixed, okay, odontoid will not move. C2-3 fixation मतलब ये हिलेगा, ये rotation होएगा, पर odontoid नहीं हिलेगा। See, all the muscles, the major muscles of the nape of neck are attached to C2 spinous process, and the other major muscle group is attached to the largest transverse process of C1. ये जो C1 का transverse process is the largest transverse process of the whole spine. ये transverse process is involved in rotatory movement, this ये जो movement है। So if you fix the C2-3
ओके, C23 को फिक्स कर दिया, इसके C2 के सब मसल्स निकाल दिए, कट कर दिए सब, तो ये C1 विल हैव ओनली रोटेटरी मूवमेंट्स, ये रोटेटरी मूवमेंट्स विल बी प्रिजर्व विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये अब एक नया टेक्निक है ऑफ C1 C2 फिक्सेशन विदाउट इंक्लूडिंग C1, where you are cutting the C1 spinous process, you are leaving the muscles of the transverse process. You are not cutting the transverse process. You are not doing anything to the arch of atlas. You are not doing anything to the facet of C2. So, in multi-segmental spinal degeneration, you do C23 fixation. And now down. C23, अगर patient suppose trolley पे आया या wheelchair पे आया, you have to do C23, C4, 5, C5, 6 up at least, and sometimes C6, 7. And you see the magic. ऐसा मैजिक तो तुमने बिलीव नहीं करोगे अपने आँख को. सपोज यू से यार ओके मैं करके देखता हूँ, अगर सपोज तुमने फिक्सेशन कर दिया, पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव, सपोज ही विल नॉट इम्प्रूव लाइक अ मैजिक, योर आर्ग्यूमेंट विल बी सपोज ही डज नॉट इम्प्रूव. इफ ही डज नॉट इम्प्रूव, तुम्हारे पास मिड लाइन है, तुम उसको कल जाके लैमिनेक्टमी एकदम फटफट फटफट कर दो या सामने से कर दो, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू. बराबर है कि नहीं? ओनली दैट यू हैव डन 2 स्टेज ऑपरेशन, विद दुनिया करती है फिक्सेशन फर्स्ट एंड डिकम्प्रेशन नेक्स्ट. बराबर है कि नहीं? You try this C2, yes, lateral mass fixation with this Camillus technique. Have these small screws which are in cervical 12 to 14 millimeter long, 2.6 millimeter to 2.4 millimeters in diameter. Very simple screws. तेरे पास है screws है अभी दिखाने? नहीं, ये these are polyaxial screws. Polyaxial screws are, I don't like polyaxial screws. Polyaxial screws जो है ना वो unnecessary. See, अभी another thing. If you are doing C1, C2 fixation with plate and screw, which is more difficult, polyaxial is relatively simpler. So you are tightening the screw on the plate. देखा ना तुमने? On the plate. So if you अगर दीवार पे screw मार रहे हो और दीवार पे टाइट कर रहे हो, तो that is strong rather than कहीं screw मार के कहीं remote उसको tighten कर रहे हो. You see, this concept of opening the joint and putting bone graft was also mine long time ago. Revolution. Unless this was never done. अभी आजकल भी लोग क्या करते हैं, इसको screw डाल दिया and they don't open the joint. And if you don't open the joint, don't introduce bone graft, your fixation is half. Means if you have done solid polyaxial fixation or solid metal fixation, it may just take if you are lucky. But if ultimately bone fusion is important. तो जॉइंट को खोलो. और एक सेंटेंस लिख लेना मेरा, व्हेन यू गो, एक सेंटेंस लिखवा देना सबसे. लर्न द आर्ट ऑफ ओपनिंग द जॉइंट. लर्न द आर्ट ऑफ ओपनिंग द C1 C2 जॉइंट. इट विल क्रिएट रेवोल्यूशन इन योर लाइफ. इट्स नॉट डिफिकल्ट. यूज माई प्रॉब्लम इज मॉडल पे. ओके, okay, this is very beautifully seen. Okay, can you see on the अच्छा सुनो, अभी उसको छोड़ो, मोनो एक्सियल या कुछ. See, this is the joint, okay? This is the joint. यहाँ से तुमने स्क्रू डाला इधर से. If you put a screw from here and turn it laterally, you see, turn it laterally, very very safe, very safe. इसको ये स्क्रू को सीधा मत डालो, सीधा. इफ यू पुट हियर इन दिस डायरेक्शन. नहीं, प्लेट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सब एक्शियल के अंदर. सी, दिस इज द डायरेक्शन. ओके, यहां से इधर से नजदीक से मत मारो, इसको लैटरली मत लो ज्यादा, इसको यहां से इधर से, दिस इज द पॉइंट, and put it down. ये इसमें, you understand? Lateral margin of lamina. ये नहीं, इतना lateral में नहीं, यहाँ पे ये, this is the lateral margin of lamina, this is the facet under vision. यहाँ से screw डालो इधर से, and don't turn it too lateral, just go down in this, and I can tell you, this is a solid fixation. एंड दिस इज सच अ सिंपल. अभी तुम साला उसको ना पेडिकल वेडिकल डालते रहे और ऑल दिस नॉनसेंस. यू सी पेडिकल, आई विल शो यू पेडिकल.
सी पेडिकल इज सो क्लोज टू द वर्टिबल आर्टरी, ये वर्टिबल आर्टरी जा रही है, यहाँ से पेडिकल में डाल रहे हो, सो ड्रामेटिकली क्लोज टू द पेडिकल. I think ignore the damn pedicle. You do this facetal screw. You see, if you see now this bone is weak. Spinous process is weak. This is weak. You see the facet. ये तो आवाज ही different आएगी. The noise will be different. समझे? You put like this. यहाँ से डाला नीचे. और तुम एक दो डालोगे ना, you put one and you are done with. तुमको 10 डालने की जरूरत नहीं है. ये कोई महान सीखने वाली चीज नहीं है. Only thing is you will be surprised. जैसे ओल्ड लोग करते हैं ना, माला जपते हैं ना, माला समय ना, और जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो बीन्स जमते हैं. मेरी कार के अंदर वो माला पड़ी है इसकी, वो मैं सालों तक जप रहा. वो मेरी बीवी बोलती है यार ये क्या कर रहा है, बोला इसको देख रहा हूँ, बस लंबर स्पाइन देख रहा हूँ. तुम देखो, अपने पास बोन रखो और देखो. इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी सेफ. यू मस्ट डू इट. इसको करो क्या, ये बहुत ही बड़ा है यार, ये तो दिस इज नॉट गुड. यू नो आई कैन अननेसेसरी क्रिएट. सी हियर, इस पे कर दो. नहीं, इसको क्यों खराब करना है यार. हाँ, देखो ये जो है ना, ये C1 जो फैसेस रहते हैं ऐसे रहते हैं. ओके, लैटरल. लंबर के रहते हैं ऐसे. इसी C1 के ऐसे, लंबर के ऐसे बिल्कुल वर्टिकल. यू सी दिस. यू सी दिस वर्टिकल, दिख रहा है ना. एंड सर्वाइकल देखो, सर्वाइकल है हॉरिजॉन्टल. देखा ना, सर्वाइकल हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से ऐसे डालना पड़ेगा नीचे. इसमें लंबर है वर्टिकल. इसके अंदर यहाँ से लेके यू हैव टू पुट योर स्क्रू डाउन ऐसा. ये रहता ना ऐसा, जैसे उसकी दिस इज लाइक दिस. सो यू हैव टू पुट डाउन एंड ज़्यादा लैटरली नहीं, डाउन. क्योंकि ये जो नीचे वाला है, इफ यू सी इट इज लाइक अ कप, it will take the joint, it will, so as a lateral, okay, lateral and down, niche. So sometimes I put 3 screws, sometimes I put 2 screws, so you can have, you know, don't put a very thick screw. 2.6 millimeter thickness is good. Niche lumbar I use 18 millimeter screws, and I do sometimes 1, 2, 3, sometimes 1, 2. एंड क्विक ऑपरेशन. डोंट डू एनी डिकम्प्रेशन. एक बार करके तो देखो भाई साहब, एक बार करके तो देखो. हाँ, एंड इफ यू हैव सम इश्यूज, यू सम रीड माय पेपर्स विच आर वेरी, यू नो, मोर देन 100 पेपर्स ऑन दिस डिजेनरेटिव स्पाइन. ऑल्दो आई विल हैव टू से दैट अभी भी दुनिया इसको डिकम्प्रेशन कर रही है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. एंड इफ यू हैव डाउट, कम इन मुंबई, आई विल शो यू सम ब्यूटिफुल मुंबई गर्ल्स एंड मुंबई फैसेट्स. क्या आएगा कि नहीं? वो साला बोलता गर्ल्स देखने आऊंगा. No, you know what? Every conceptual change is very difficult to be accepted suddenly, but at least it gives an opportunity to think. बराबर है? It gives an opportunity to think, and also one little idea. सुन ले पंकज, one little idea is bigger than 1,000 people operating for 1,000 years. एक idea makes the change. तो idea है तुम्हारे पास अभी, ना सोचो उसके बारे में. समझ में आया? आज मेरे को कोई बोले कि मैं डिजेनरेटिव स्पाइन के लिए डिकम्प्रेशन करूंगा, तो मैं बोला यार नॉनसेंस है, गधा है. पर सडनली मैं तुमको बोल रहा हूँ, यू हैव बीन डूइंग, एंड सीनियर न्यूरोसर्जन्स हैं, वो सडन डूइंग फॉर 50 years, 20 years, 30 years, दे विल नॉट सडनली एक्सेप्ट कि यार ये क्या, हम तो साले इतने दिन से कर रहे हैं. फॉर क्यारी मालफॉर्मेशन, इफ समबडी सेज आई विल डू फोराmen magnum decompression today, I will laugh at them really कि what idiot he is. But दुनिया कर रही है, they are not ready to change. Why they are not ready to change is because they cannot do it. ये C1, C2 in C1 in Chiari and Syrinx is not easy.
करना आता हो तो बात करो, नहीं करना आता तो मत बात करो। इन एनी केस एंजॉय माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सर। अबे साले तू मेरी जान ले ले, थोरासिक में सेम है, थोड़ा जैसे इसमें हाँ इसमें जैसे सर्वाइकल में ऐसा हॉरिजॉन्टल रहता है, लंबर में नीचे रहता है, ये मिडवे है, दिस इज मोर लाइक सर्वाइकल। डॉर्सल स्पाइन इफ यू सी, डॉर्सल स्पाइन इज लाइक सर्वाइकल हॉरिजॉन्टल, थोड़ा टर्न रहता है टुवर्ड्स वर्टिकल। एज यू गो डाउन फ्रॉम सर्वाइकल टू डॉर्सल देयर इज अ स्माइल चेंज, ये देखो यहाँ नीचे चेंज हो गया, वर्टिकल आ गया, देख रहे हैं ना। सो एज यू गो डाउन द फैसेटल अलाइनमेंट्स चेंजेस, coronal alignment, and then it becomes more vertical, but basically this has dorsal is very safe. Cervical में क्या है कि problem of vertebral artery is there, problem of roots is there. Dorsal में तो there is no problem, there is no problem of roots, no problem of artery. So under vision see the facet and put under vision, it's not difficult at all. इसमें अगर तुम कोई बोले ना ये difficult है तो बोलेगे साले छोड़ दे न्यूरोसर्जरी, कबड्डी खेल, समझ में आया? कबड्डी तो बहुत डिफिकल्ट है। सो एंजॉय इट माय फ्रेंड्स एंड बेस्ट विशेस। स्क्रू डाल के यू सी, एक बार तो स्क्रू डाल दिया, बेसिकली वी वांट बोन फ्यूजन, तो वो लैमिना को और स्पाइनस प्रोसेस को ड्रिल करो। और मैं क्या करता हूँ स्पाइनस प्रोसेस पहले फॉर मल्टी सेगमेंटल सर्वाइकल आई यूज टू टेक आइलियक रेस्ट, बट नाउअडेज व्हाट आई डू इज आई ब्रेक द स्पाइनस प्रोसेस फ्रॉम द बेस, उसको उसमें मसल वसल निकाल के उसको फिर वहाँ पे साइड में आई जस्ट पुट स्पाइनस प्रोसेस का, बट उसको जो लैमिना है उसको अच्छे से ड्रिल करो, मेक इट वेरी फर्टाइल फॉर बोन ग्राफ्ट, ड्रिल करके उस पर बोन ग्राफ्ट डालो। फैसेट के बीच में ना यहाँ मैं पहले डालता था पर आई डोंट पुट इन द सब एक्शियल फैसेट्स, आई डोंट पुट, उसको सीधा बस स्क्रू डाल दो उसमें और कुछ मत करो, क्योंकि बहुत क्लोज रहती है वो कैविटी और खोलने में अननेसेसरी यू कैन यू नो यू हैव सम प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो व्हेन यू पुट ना यू शुड नॉट पुट क्लोज टू द एज ऑफ द फैसेट, थोड़ा फैसेट से दूर डालो और नीचे डालो ऐसा। पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डूइंग डिजेनरेटिव स्पाइन ना तो सब ऑस्टियोफाइट्स आर फॉर्म्ड एट द एज। अनदर थिंग आई विल टेल यू, व्हेन वी टॉक ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, कल मेरे यू वर देयर मेरे इसमें, when we talk of osteophytes there is only one osteophyte posterior to the vertebral body, बराबर है? You will be surprised to know that there are huge osteophytes in the facetal articulation by the side of the joint. ये जो C1 C2 का facet है ना उसके साइड में तुमको facets जो article वो मिलेगा, osteophytes मिलेंगे, साइड में osteophytes मिलेंगे। So osteophytes are not just posterior to the body, they are circumferential, intersegmental osteophytes. जैसे लिगामेंटम बकलिंग होती है, वी टॉक ऑफ ओनली लिगामेंटम फ्लेमम बकलिंग, वी टॉक ऑफ ओनली पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, बट देयर आर सर्कमफ्रेंशियल लिगामेंट्स, ऑल द लिगामेंट्स बकल, यू अंडरस्टैंड? बट अच्छा अनदर लास्ट थिंग आई विल टेल यू, लास्ट थिंग पंकज, आई वाज टॉकिंग यस्टरडे कि कंप्रेशन इज नॉट द इशू। Like for instance, कभी कभी सिरिंगोमाइलिया होता है, only 20% of nerves are there and the patient is completely asymptomatic. That is one. कभी कभी तुम इंट्राड्यूरल ट्यूमर देखोगे इतना बड़ा सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, पेशेंट हैज मार्जिनल सिम्टम्स, बराबर है? जल्दी कर दे, मेरे को निकलना है बस। सुन ले भाई साहब, तू सुन ले, इधर मेरे नजदीक आ, तू कहाँ भाग रहा है? इधर इधर लास्ट सेंटेंस, नजदीक, यहाँ लास्ट सेंटेंस। जो नर्व रूट्स होती है ना, न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दे आर लाइक रबर बैंड्स, दे आर लाइक रबर बैंड्स। उसको तुम डायरेक्ट डिफॉर्मेशन और डायरेक्ट प्रेशर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम उसको रबर बैंड के समान खींच सकते हो, नर्व को कुछ नहीं होने वाला। इट इज नॉट द compression or neural deformation that is the problem. It is not the compression or neural deformation that is the issue. It is instability related micro movements that cause the problems. Bye bye and enjoy. Thank you so much. अरे यार तू साले छोड़ेगा नहीं मेरे को? सर इनको मालूम है 3 बजे की आपकी फ्लाइट, 2 बजे की है। के अंदर अगर अपन बोन नहीं डाल के बोन
जरूर डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं. In my article, actually, I have written कि you put bone graft in the joint, but I don't do it. But in my article, it is written that you open the joint, introduce some bone और उसके साइड पे स्क्रू डालो. क्या? कोई जरूरत नहीं है. Facetal screw is a beautiful Camillus technique. Thank you so much, sir. सर कैसे
Good afternoon. Thank you very much for coming here, and we have learned a lot with sharing of knowledge from each other. Attention, please. We will now begin with the certificate distribution. I'll request Professor V.D. Sinha sir to kindly give the certificates. I'll call each of you one by one. जो साइन हो गया वो दे दीजिए। नहीं जो है उन दे दीजिए। I'll request Chief Guest Dr. V.D. Sinha to please take the seat. He is Director of SDMH Hospital and ex-Head of Department of SMS Medical College. I'll request Guest of Honor Professor N.C. Punia sir, Director of Neurocare, to have his seat. Punia sir. I'll request guest faculty Professor Atul Goel sir for taking his seat after signing the certificates. I'll request Professor Praveen Salunke sir to take his seat. I'll request Professor Ashok Gupta sir to take his seat. I'll request Professor Ashim Kataria sir, Organizing Secretary of this workshop, to take his seat. I'll request Purohit sir, Professor Devendra Purohit sir, ex-Head of Department Neurosurgery, to please take his seat. Professor Manish Agrawal sir, please take your seat sir. जो साइन हो गए वो दे दो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना। हाँ, जिनके हो गए वो चलेगा। Dr. Ramjas Chaudhary, please come. I'll request Professor Sinha sir to give the certificate. Dr. Ramjas Chaudhary. Dr. Umesh Kalra. Dr. Umesh Kalra. हाँ सर, उसमें साइन नहीं हुए होंगे, साइन नहीं हुए होंगे। साइन ही नहीं, आज वाली लिस्ट का ये है ना जो आए साइन साइन कोई बात नहीं, बिना साइन के दे दो यार बाद में। तो सर्टिफिकेट निकाल के रखो फिर। सर इसमें अल्फाबेटिकली ढूंढना पड़ेगा ना, फिर एक का नाम एक बोलेंगे, सर्टिफिकेट ढूंढना ऐसे पड़ेगा। पकड़ा के फोटो खिंचवा दो, वो सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे। हाँ ये बात, एक सर्टिफिकेट ऐसे फोटो बाद में ले लेंगे। ठीक है ठीक है। डॉक्टर विशाल मंगल, डॉक्टर विशाल मंगल, डॉक्टर देवव्रता शाह, डॉक्टर विनय रोहरा, डॉक्टर विनय रोहरा, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल, अमित गुप्ता जी का लाइन से बोलता हूं, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल। So please note that after the certificates are distributed, you have to be with us for the lunch. Don't go away carrying your certificate. You have to stay here till the lunch. डॉक्टर के बंसल सर, डॉक्टर हिमाक्षी बंसल, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर निखिल जैन, निखिल विकास, डॉक्टर निखिल जैन, डॉक्टर अब्दुल रऊफ,
Dr. Suren Jain, Dr. Rahul Solanki, Dr. Harsh Joshi, Dr. Sangram Bal, Dr. Tejas, Dr. Tejas, Dr. Manoj, Dr. Sandeep, Dr. Bhal Singh, Dr. Rakesh Goyal, Dr. Akash, Dr. Abhyuday, Dr. Ram Sevak Yogi, Dr. Abhyuday, Dr. Amit Gupta, Dr. Akshay Patidar, Dr. Ankit Prajapati, Dr. Arvind Sharma, Dr. Ugam Singh Meena, Dr. Sanjay Bihari sir, Dr. Chandra Shekhar, Dr. Puneet Bansal, please come for the group photograph. Please come for the group photograph. Arvind.
एक चेयर और ले आए प्लीज, एक चेयर, एक चेयर दे दीजिए। एक लेवल ऊपर भी जा सकते, अरविंद एक चेयर है सर, पीछे खड़ो सर, एक मिनट रुक जाइए, चेयर आ रही है। सेंटर में आ जाता अमित।